को गुड इवनिंग. नमन जैन, स्नेहा, ऋषि, राधिका, Priyanka. So most of you are ranker students, Chandmani, though it was an open session, but happy to see you all. So 25 तो अब गया हाथों से. Those who prepared, didn't prepare. अब तो हमारे हाथों में है 26. ठीक है, तो 26 ही प्लान करनी है. We have to make plan for 26. 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं. Let others join. क्यों हंस रहे हो मोहित? आपको कल की बातें, मुझे पता है आपके फ्रेंड्स आपको क्या क्या कह रहे होंगे. कुछ बातें मार्केटिंग की भी हो रही होंगी. सर से तूने कितना परसेंट लिया है, ये है वो है, ये बातें भी हो रही होंगी. हैं? क्या करें, फ्रेंड्स होते ही ऐसे हैं. और ऐसे फ्रेंड्स जो आपको घंटों तक नहीं हंसा सकते, फिर वो फ्रेंड्स क्या हुए? मतलब कोई 2 मिनट के फ्रेंड नहीं. सो हैव फ्रेंड्स. लाइफ वैल्यूएबल हो जाती है. यस, एवरीवन गुड इवनिंग अगेन. राइट. तो 26 की तैयारी कर लेते हैं. 26, लेट अस प्रिपेयर फॉर 26. सो पेज नंबर 2 पे आ जाइए. पेज नंबर 2. दिस डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी अपलोडेड. सो कैसे अपलोड होगा इसमें? तो इसमें जूम में कोई है सिस्टम की आई कैन अपलोड डॉक्यूमेंट? टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है डॉक्यूमेंट. आर यू गोइंग टू अपलोड दिस सेशन ऑन यूट्यूब? यस, वी विल अपलोड. अभिषेक पाटिल, वी विल अपलोड. आई वॉज थिंकिंग कि ओके, फाइल का है सिस्टम. सो आई एम अपलोडिंग ए फाइल. I think I can do direct copy paste here. So the document I'm discussing here is available at our Telegram channel. Definitely, those who have connected here must have come either through Telegram channel or through WhatsApp मैसेज. सो WhatsApp में भी हमने जो है ना इसको सेंड कर रखा है. So those who are not having access to Telegram can download this file from Telegram. Right. Okay, let us discuss. I'm sure everyone is having this document, the document which I am having here on the screen. Yes, sir. Everyone having it, right? सक्सेस के लिए सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूं, सक्सेस के लिए जो इतने कंडीशन क्वालिफाई किया है, अराउंड 280 290 कंडीशन क्वालिफाई किया है. आउट ऑफ दैट
around 50% must have been in direct touch with me during past 22 years. So most important mantra for success is consistency. Consistency came first and intelligence came second. Intelligence came second. I'm having experience of CA topper who was not able to qualify IAS prelims. K.N. Sujoy, CA topper. He came at Rankers classes for coaching in the year 2010 or 11, but he didn't qualify. And I'm having experience of certain candidates. It seemed that they are having average IQ or average awareness, but they qualified. Not only they got in the list, they got good rank also. I might have underestimated their potential, but they got good rank. Certain candidates were casual also, but they got a very good rank. For example, 9th or 10th rank by this Khushbu Goyal. Certain candidates who were highly laborious, they got good rank. For example, Sonal Goyal, 13th rank. And candidates like Ravi Dhawan, good intelligence, good preparation also. First he got 93rd rank and thereafter he got 6th rank. Right? So intelligence is secondary. Every God has gifted enough of that. So never feel that मेरे पास उसकी कोई कमी है. आपके पास वो है. The only thing is how you use it. How you use it. That is very important. और उसके यूज करने में जो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम मीन्स यू कैन यूज दिस ब्रेन to get successful in this exam if you give 18 to 24 months. अगर आप चाहते हैं कि मैं 12 months में IAS बन जाऊं, बन सकते हैं. If during your graduation, first year, second year, third year, even +2, you must have been interested in taking part in competition, social issues, ऐसे जो अब समझ में आ रहा है ना आपको. There is culture of reading newspaper at home also. Then within 12 months also it is doable, provided from +2 level you are doing something which is in public. खासकर प्रोफेशनल्स के जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, they can do. But to me 18 to 24 months are needed. Time frame is most important thing in this examination. I can say 95% or 90% of the candidates appear in this examination without proper time frame. I say this 90% plus. क्लास में भी मैं देखता हूँ, आउट ऑफ इफ क्लास मेरे सामने 50 बच्चे होते हैं तो 2 4 5 ऐसे होते हैं जो कि 26 की तैयारी कर रहे हैं. रिमेनिंग 45 और 40 दे आर सेइंग दैट यस सर नेक्स्ट ईयर ही अपीयर होना है, मुझे जल्दी अपीयर होना है. एंड प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर फ्रॉम because of wrong time frame. You are not able to use it well, you are not able to plan well. So सबसे पहले मैं सक्सेस का जो मंत्र कहूंगा जो इजी है, सबसे इजी है, बट उसके लिए चाहिए आपको पेशेंस. पेशेंस नहीं होता कि बेटे जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करना है. मानते हैं, मैं भी मानता हूं होना चाहिए. प्रशांत राज शुक्ला क्वालिफाइड विद इन 6-7 मंथ ओनली. उन्होंने 31 मई को या 2 जून को सीए फाइनल का एग्जाम दिया था. ऑन 7 अगस्त ही गेव प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. 2016 में उस समय होता था. एंड इन दिसंबर ही गेव मेंस एग्जामिनेशन एंड इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ही गॉट 65th रैंक. ठीक है. सो प्रीलिम्स देते ही वो कोचिंग के लिए आ गया. मैंने कहा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, दैट वुड बी बेटर. बोला नहीं सर मेरा टारगेट इस साल का है ही नहीं, मेरा टारगेट तो नेक्स्ट ईयर का है. इवन ही अंडर एस्टिमेटेड ऑन पोटेंशियल. बट चलते चलते प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, बट ही वाज फोकस्ड और गॉट 65th रैंक और आईएएस भी मिल गया. इस समय वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है. सो मैंने जानना चाहा कि प्रशांत ऐसा नहीं हो सकता कि विद इन 6 मंथ यू क्वालिफाइड. बोला सर फ्रॉम कॉलेज डेज आई हैव बीन टेकिंग पार्ट इन कॉम्पिटिशंस, क्विज, ऐसे एटसेट्रा, पार्लियामेंट एटसेट्रा. फिर मुझे पता चला इसका तो फाउंडेशन पहले से तैयार है. इट इज नॉट जस्ट 6 मंथ्स.
So he was preparing. So proper time frame is very essential. इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है आइडली 24 मंथ, 24 मंथ से ज्यादा नहीं है, फिर वो एक्सेसिव हो जाएगा, बट मिनिमम 18 मंथ से 24 मंथ फॉर बोथ जीएस प्लस कॉमर्स, जीएस प्लस कॉमर्स, दैट इज नीडेड. Out of 20, out of this 24 months, commerce will take around 8 months to 10 months, and GS will take around 14 months to 16 months. उसके बगैर जीएस अच्छी तरह से तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यू विल बी कॉम्पिटिंग विद दोज हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड, और जनरल कैटेगरी में कंपटीशन फिर और ज्यादा होगा, आपको अच्छी मेरिट में आना पड़ेगा, राइट. सो जस्ट हैविंग नॉलेज एंड राइटिंग जस्ट लाइक ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम काम नहीं चलेगा. यू मस्ट हैव इंपैक्टफुल होल्ड, एंड होल्ड हो या ना हो आंसर्स. आउट ऑफ 1750 आउट ऑफ 2025, 1750 to out of 2025, 1750 मार्क्स का इंपैक्टफुल होना चाहिए. इंपैक्टफुल कॉलेज टाइप रीडिंग से नहीं आता, उससे नहीं आएगा. अच्छा, आप कोई 6 महीने में भी वो रीडिंग पूरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए. उस टाइम के अंदर कैसे होगा वो आगे डिस्कस करेंगे. कॉमर्स में फोकस करते हैं. कॉमर्स में आपका जो ये है 8 to 10 मंथ का टाइम पीरियड है, वो कैसे होना चाहिए. आई डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, 4 मेजर पार्ट्स. अगर आप ये 4 मेजर पार्ट्स में अपना टाइम नहीं लगाते हैं, इट वुड बी अनफेयर टू एक्सपेक्ट गुड स्कोर. सबसे पहले 6 मंथ्स आपको लगाने हैं सिलेबस कवर करने में. 6 मंथ्स तो कम से कम चाहिए. इट प्रिपेयर्स फाउंडेशन. In these 6 months, you won't be having in-depth knowledge. You will be having broad area, broad knowledge of everything. वो होना चाहिए. You won't be having best answer writing practice. कई बार स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं, 4 out of 10, 5 out of 10. वो कहते हैं सर not getting good and getting discouraged. In this 6 month time, there is no reason to get discouraged. हाँ, डिस्करेज इसलिए होते हैं कि उसको दिखाई दे रहा है कि आफ्टर 6 और 8 मंथ आई हैव टू राइट मेंस आल्सो, तो डिस्करेजमेंट आएगा. अदरवाइज पहली रीडिंग में तो जो है आपको सिलेबस की अवेयरनेस हो पाएगी, इन डेप्थ अवेयरनेस, पूरी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाएगी, बिकॉज यू आर हैविंग जीएस प्रेशर आल्सो. या तो आप जीएस वगैरह सब बंद कर दो, सिर्फ कॉमर्स पढ़ो 6 मंथ, तो 6 मंथ में होल्ड आ सकता है इफ यू पुट 100% टाइम ऑन कॉमर्स ओनली. बट नेवर यू कैन पुट मोर देन 6 आवर्स ए डे. अगर क्लास कर रहे हैं तो 3 आवर्स क्लास, 3 आवर्स सेल्फ स्टडी. अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली 6 आवर्स लगाएंगे, 7 आवर. यू विल बी पुटिंग 2 to 3 आवर्स ऑन जीएस आल्सो. सो 6 मंथ में अपने आप से अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना कि आई विल बी रेडी फॉर 300 प्लस मार्क्स, दैट वुड बी अनड्यू, अनरीजनेबल होगा, नहीं होगा. तो इसलिए मैं उनको भी जो क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट है, सो ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स वी शुड आल्सो कंडक्ट इजी टेस्ट्स. मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने चाहिए हमें भी टेस्ट में. व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो यू मस्ट बी एबल टू राइट साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स, जैसे आपने ग्रेजुएशन में लिखा है. दैट इज 6 मंथ कवरेज हो जाएगी सिलेबस की. मे टेक 7 मंथ आल्सो. 6 मंथ के बाद फिर आपका रियल स्टडी स्टार्ट होगा दिस 4 मंथ में. हेयर यू मस्ट डू रिवीजन, गुड रिवीजन, रिवीजन प्लस चैप्टर लेवल आंसर राइटिंग, चैप्टर टेस्ट, रिवीजन प्लस चैप्टर टेस्ट, ये होना चाहिए. चैप्टर टेस्ट जरूरी नहीं है, बट चैप्टर टेस्ट आर हेल्पफुल इन रिवीजन, क्योंकि विदाउट टारगेट दिस ह्यूमन नेचर वॉन्ट बी फोकस्ड, वॉन्ट बी कमिटेड. इफ यू आर हैविंग a target of writing 1 test daily or 4 tests in a week, भाई हर alternate day टेस्ट आपका, मंडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे टेस्ट है, सो यू विल बी हैविंग ए प्रेशर टू रिवाइज. वो ह्यूमन नेचर है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते. तो चैप्टर टेस्ट लिखना जरूरी है ड्यूरिंग 4. यहाँ पर तो कैजुअल लिखना जरूरी है, कैजुअली.
इन दिस 6 मंथ चैप्टर टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट टेस्ट होना चाहिए। भी टेलर पढ़वाया तो टेलर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, बट ड्यूरिंग 4 मंथ्स मस्ट राइट चैप्टर टेस्ट। उसकी टाइमलाइन भी डिस्कस करेंगे हम। चैप्टर टेस्ट, चैप्टर टेस्ट एक बार कवर करेंगे तो आगे आगे होल्ड बढ़ता जाएगा, पीछे पीछे डाउन होता जाएगा चैप्टर टेस्ट। बट चैप्टर टेस्ट से काम नहीं चलना, आपको एक रिवीजन और लगाना पड़ेगा अच्छे वाला, क्योंकि सीधे चैप्टर टेस्ट से जो है आप एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर सकते। चैप्टर टेस्ट के बाद आपको सब्जेक्ट टेस्ट लिखने होंगे, सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट। और सब्जेक्ट टेस्ट के बाद यहां पर यू कैन से फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। देखिए टेस्ट को मैं बेस क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली यू एंड एग्जामिनर आर कनेक्टेड थ्रू टेस्ट्स। आपके और एग्जामिनर के बीच में जो मैरिज है वो टेस्ट पेपर है और कोई चीज नहीं है। आपके और एग्जामिनर के बीच में जो कम्युनिकेशन है दैट इज द आंसर शीट। सो यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लिखना आपको, कॉम्प्रिहेंसिव। एक्सपेक्टिंग योरसेल्फ कि सीधे आप पहली रीडिंग करें, पहली रीडिंग से ही सब्जेक्ट टेस्ट पे आ जाए, सब्जेक्ट से कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा। ब्रेन सीक्वेंशियल मैनर में चीजों को याद करेगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ यू आर एबल टू राइट सब्जेक्ट टेस्ट वेल, ऐसा होने वाला नहीं है। तभी हो सकता है यू आर नॉट हैविंग एनी अदर बर्डन, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। जीएस तो आपको तैयार करना है एक्सक्लूसिवली। और उसके बाद 5 डेज आपको जो मिलते हैं, 5 डेज मिलते हैं, राइट। उसमें तो फाइनल टच होता है, फाइनल टच, फाइनल टच। सो इस तरह से 2026 के लिए अपने टाइमलाइन को 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ एंड 5 डेज में आपको सेग्रीगेट करना है। डेफिनेटली अच्छी तैयारी हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। ये नहीं सोचना कि 2026 में पता नहीं क्या होगा। वो तो आप आईएएस बन के भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे पीछे का आईएएस का हुआ था या आईपीएस का हुआ था। वो नहीं सोचना, अनसर्टेनिटी के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। प्लान आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अनफोर्सिन सिचुएशंस आती हैं उनके लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, अपने आप को तैयार करके रखना चाहिए कि हेल्थ से रिलेटेड मेरी साइड से इश्यू ना आए, आई शुड मैनेज माई सेल्फ वेल, ठीक है। अब इस बात का मेरे पास प्रूफ है, आपके सामने प्रूफ है। यूपीएससी ने डाटा अभी पब्लिश किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में 7% कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 93% के पास इंटेलिजेंस की कमी है। इन फर्स्ट अटेम्प्ट जो 7% क्वालिफाई होते हैं ना, वो भी वो हैं दोज हु हैव प्रिपेयर्ड इट बिफोर one year before attempt appearing in the first attempt। कोई रेयर कैंडिडेट ऐसा होगा कि 6 मंथ की तैयारी की या 8 मंथ का तैयारी किया एंड क्वालिफाइड, बहुत रेयर होगा। तो रेयर में तो अपने आप को नहीं रखना, राइट। इस एग्जाम की नेचर ऐसी है, रेयर में नहीं रखना, राइट। एंड सेकंड अटेम्प्ट में आपने देखा 14% सक्सेस रेट, थर्ड अटेम्प्ट 22%, फोर्थ अटेम्प्ट आल्सो 22%। मतलब थर्ड अटेम्प्ट इज हाईली रिवार्डिंग, third attempt। So I say 24 months is sufficient time for writing mains, 24 months। ये मिनिमम है 24 मंथ, 18 to 24 मंथ आइडल है। आइडल मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर एबल टू पुट 8 to 12 आवर्स इन योर स्टडी। कभी भी कंसिस्टेंटली 10 आवर्स नहीं होंगे। कंसिस्टेंटली आपके 2 दिन तक हो सकते हैं 10 आवर, तीसरे दिन डाउन हो जाएंगे। सो समटाइम्स 10 आवर्स, समटाइम्स 8 आवर्स, समटाइम्स 11 आवर्स, समटाइम्स 6 आवर्स, समटाइम्स 0, ठीक है। तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर किसी को इफ समवन इज हैविंग प्रॉपर टाइम फ्रेम, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने जिन्होंने तैयारी की, जैसे इस बार वेदिका बंसल थी, वेदिका बंसल, शी गॉट 96th रैंक। सो शी ज्वाइंड रैंकर्स एट इन 21, 21। शी डिडंट अपीयर इन 22। कहीं ना कहीं मैंने डिस्कस किया होगा या उसने सेल्फ आइडिया लगा लिया होगा कि 22 में अपीयर करने का फायदा नहीं है। शी अपीयर इन 23 and she qualified, and in first attempt she got second attempt she got 96th रैंक, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट 21 में अपियर किया, सो शी गॉट की इतना आसान नहीं है। फिर 22nd उन्होंने पूरा अपियर ही नहीं किया, और 23rd में जो ना सी अपियर्ड। सो टाइम लगाना है। सो जिनकी तैयारी हाफ से भी कम है तो 25 तो उनके लिए नहीं है। प्रिपेयर फॉर 26, खुद को भी सेटिस्फाई कर लीजिए, पेरेंट्स को भी कीजिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। हैविंग ए राइट टारगेट इज एसेंशियल,
ठीक है। सो पहला टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। टाइम फ्रेम आपके पास प्रॉपर है, आप कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं कहता हूं जिंदगी की कोई भी लड़ाई टाइम फ्रेम प्रॉपर होना चाहिए। जब हम टाइम फ्रेम छोटा सोचते हैं ना, तब प्रॉब्लम होती है। टाइम फ्रेम बड़ा सोचिए। मैं अपनी लाइफ का थोड़ा प्रिंसिपल बताता हूं। अगर कोई मेरे साथ चीटिंग कर लेता है और इस समय मैं बदला नहीं ले सकता, मैं उसको परमानेंट मेमोरी में डाल लूंगा। मेरा दिन आएगा 2 इयर्स के बाद, 3 इयर्स के बाद, 5 इयर्स के बाद, मैं एक्शन लूंगा। अभी किसी ने हमारे रिलेटिव की जो ना प्रॉपर्टी में हिस्सा था, तो चीटिंग कर ली। तो मैंने उनको कहा कि आपको शॉर्ट टर्म सोचना ही नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। उस बंदे को एक बात बता दो कि आप इस तरह से प्रॉपर्टी खा नहीं सकते, जी नहीं सकते। मैं आपको हर्ट नहीं करने वाला, लेकिन मेरा टाइम आएगा, आपको ये रिटर्न करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि विद इन 2 डेज और 5 डेज हो जाए, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अपना टाइम आएगा, ये बिल्कुल सोच के रखें। ठीक है, 26 के हिसाब से तैयारी करेंगे, प्लान हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट। प्लान तो है लेकिन एनर्जी पुट नहीं किया। एनर्जी रिक्वायरमेंट मैं क्लासरूम वालों को तो रेगुलरली बताता हूं। एनर्जी रिक्वायरमेंट तो एनर्जी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए मैंने बताया 3 थिंग्स। यू मस्ट बी माइंडफुल अबाउट योर फूड, अबाउट योर एक्सरसाइज, अबाउट योर स्लीप। आपको 15 डेज के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर, 15 भी नहीं, अराउंड 12 डेज के अंदर अपना बेस्ट पुट करना है। जब मेंस लिखेंगे आप, प्रलिम्स में भी आपको पुट करना है। प्रलिम्स भी जो है ना, वो 1 डे इज डिसाइडिंग फॉर यू, 1 डे इज डिसाइडिंग फॉर यू, एंड दैट इज नॉट ए सिंपल एग्जाम डे। दैट डे यू पास थ्रू स्ट्रेटेजी, यू पास थ्रू स्ट्रेस, यू पास थ्रू इंटेलिजेंस, यू पास थ्रू योर पेशेंस। सारी चीजें चाहिए। और ज्यादातर जो कैंडिडेट फेल होते हैं, काफी कैंडिडेट, उनके पास नॉलेज होती है, बट इन एग्जामिनेशन बाय सीइंग द टफ क्वेश्चंस, फिर वो संभल नहीं पाते अपने आप को। आपको पहले दिन से कंसिस्टेंटली अपने आप को, एनर्जी लेवल को मेंटेन करना है थ्रू राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट स्लीप। उसको कैजुअली नहीं लेना है, पार्टिकुलरली दोज हु आर लिविंग अवे फ्रॉम होम। कि चलो कभी पोहा खा लिया तो कभी पैटीज खा लिया, बर्गर खा लिया, मतलब कैजुअल नहीं होना है। कभी रात को 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक, ऐसे नहीं होना है। बिकॉज इफ यू डोंट फॉलो द biological clock, you won't be able to tap full energy of your body as well as your brain. well proved है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अच्छी स्लीप के लिए आपको जरूरी होगा अच्छा एक्सरसाइज एंड राइट फूड। अगर आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है तो शाम को एक्सरसाइज कीजिए। 11 बजे सोना चाहते हो, ठीक है, डिनर से पहले अच्छे वाली एक्सरसाइज कीजिए। एक ही जगह है खड़े जो है आप 1000 टाइम्स कर लीजिए, देखिए नींद क्यों नहीं आएगी, आएगी। ठीक है, इसको मेंटेन करना है। उसकी डिटेल में और डिस्कस नहीं कर सकता। फूड, एनर्जी, फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, जनरली दिनों में से कोई एक कंप्रोमाइज हो जाती है, दो भी कंप्रोमाइज हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में यू माइट फील दैट टुडे आई स्टडीड 12 आवर्स, बट 12 आवर की प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, वो 4 आवर की प्रोडक्टिविटी होगी। समटाइम्स आई वेक अप एट 3 AM एंड वर्क टिल मॉर्निंग। बाद में मेरे को याद ही नहीं रहता मैंने क्या क्या वर्क किया था। सो आई सीरियसली अवॉइड वेकिंग अप एट 3 AM। ठीक है, 5 AM ठीक है। सो सारी चीजों का पूरा ध्यान देना है। एंड रिचार्ज इज एसेंशियल। जनरली वी फॉरगेट, जनरली वी इग्नोर रिचार्ज ऑफ अवर बॉडी। सो रिचार्ज के लिए आपको वीकली रेस्ट देना है, वीकली रेस्ट देना है। रेस्ट ऑन वीकली बेसिस, नॉट ओनली दिस, रेस्ट ऑन डेली बेसिस आल्सो, डेली बेसिस आल्सो, डेली बेसिस। डेली बेसिस का सबसे बड़ा रेस्ट है आपका ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम एंड डिनर टाइम। एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टेक प्रॉपर टाइम, 20 to 30 मिनट्स, 40 मिनट्स का प्रॉपर टाइम लीजिए। उसमें बुक मत पढ़िए, उसमें न्यूज़पेपर मत पढ़िए, उसमें न्यूज मत देखिए। आप इतने बिजी नहीं हैं, आप मिनिस्टर नहीं हैं, आप किसी सिटी की कमिश्नर नहीं है कि आपको पढ़ते समय भी वो करना पड़े। उस समय अपने आप को, जैसे आपको पता होगा, मैं
कभी बार ऑफिस में होता हूँ या घर पे भी होता हूँ तो मैं खुद चाय बनाता हूँ। ऑफिस में भी दिन मंजीत कहता है सर मैं बना देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसलिए नहीं कि मेरे पास टाइम है, मैं इसलिए कि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरा टाइम जो है फिर काम में लगा रहेगा, उससे स्ट्रेस आएगा। सो आई फाइंड अपॉर्चुनिटी कि मैं स्लो एंड स्टडी करूं, फिर मैं चाय को भी स्लो बनाता हूं। मतलब आई नीड 15 मिनट्स टू टेक टी, अदरवाइज इफ समवन गिव्स मी टी रेडीमेड, सो आई टेक टी, एंड आपको पता है क्लास में भी आई टेक टी विद इन 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स की चाय में क्या है कि मेरे को 13 मिनट्स का रेस्ट मिला ही नहीं, राइट। ये टाइम डेली आपको देना है अपने आप को, इसमें से छीनने की कोशिश मत करना। डोंट स्नैच टाइम फ्रॉम दिस। एक तो ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ठीक है, और वैसे भी बताया जाता खाना खाते समय इस समय, तो ये टाइम प्लस डेडिकेटेड फन टाइम होना ही होना चाहिए। फन टाइम जरूरी नहीं है कि किसी, जैसे मोहित वैद कल अपने जो ना फ्रेंड्स में फंसे हुए थे, अब मुझे पता नहीं क्या क्या इनके फ्रेंड्स ने क्या हालत की इनकी। तो आपका ऐसा ग्रुप होना चाहिए, आप देखिए याद रहेंगे ये दिन। यू विल रिमेंबर दीज डेज, यू विल रिमेंबर दीज डेज इवन आफ्टर गोइंग इनटू सर्विस। और मुझे कहेंगे कि सर वो याद है क्यूईपी की जो ना आपने मार्केटिंग की थी मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल पे, राइट। सो डेली ऐसा होना चाहिए जो आपको जो ना हंसने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि जिस दिन आप हंसने से कट गए इसका मतलब कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टरबेंस है। लोनली जो फील कर रहा है इसका मतलब वो सोशली डिस्कनेक्टेड हो गया। ये मेंटेन रखना है, उसमें टाइम वेस्टेज नहीं होता। इट इज नॉट ए वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। वो फन चाहे आपको गॉसिप में करना पड़े या किसी की लड़ाई देख के करना पड़े, टीवी की कोई पार्टिकुलर सीरियल देख के करना पड़े, सीरीज देख के करना पड़े, जरूर करना है, उसमें भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। ओके, बट इट शुड बी क्विक, 20 मिनट्स, 40 मिनट। आप मेरे कहने पे टीवी वो मूवी देखना शुरू मत कर देना कि सर ने कहा था 2-2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, नहीं, उसमें फिर लंबा टाइम चला जाता है। वो होना चाहिए ब्रेक के लिए, ब्रेक कीजिए, नोट डाइवर्जन के लिए। गोल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिचार्ज एसेंशियल है। ये तो हो गया रिचार्ज का जो ना रेस्ट रिचार्ज, एंड रिचार्ज थ्रू फूड, रिचार्ज थ्रू फूड। तो फूड इस तरह का लें जो आपको क्विक एनर्जी भी देता है और स्लो एनर्जी भी देता है, दोनों चीजें। मान ले पढ़ते पढ़ते आपको एनर्जी की जरूरत है, यू टेक ग्रेप्स, ग्रेप्स। बट जो एनर्जी कंसियस है, ग्रेप्स को अवॉइड करें। या ऑलरेडी ये है डॉक्टर ने कहा रखा है ज्यादा मीठी चीजें नहीं खानी, ग्रेप्स, ग्रेप क्विक एनर्जी देता है। लेकिन आप अगर लंबे घंटों बैठते हैं तो आप स्प्राउट्स, वो आपको रिचार्ज रखेंगे। फिर वाटर तो जो है आपका फ्रेंड होना चाहिए। वाटर सुबह जो है ना अपने पास 6 लीटर, 5 लीटर to 6 लीटर तो पक्का रख लीजिए। लोअर साइड 3 लीटर पक्का होना चाहिए। 3 लीटर से नीचे तो ये सोच लीजिए आप अपने ब्रेन का ऑप्टिमम यूज नहीं करेंगे। आपको दिन में 10 बार वॉशरूम जाना पड़े, आपको कोई पागल कहे, लेकिन पानी लेना है, वो रिचार्ज करेगा। बॉडी का जो ईंधन है वो बर्गर नहीं है, बॉडी का जो ब्रेन का जो सबसे बड़ा फ्यूल है वो ऑक्सीजन, दैट विल कम फ्रॉम एक्सरसाइज। बट पूरे दिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वाटर। और मैं कहूंगा वाटर भी जो ना कुछ वाटर ट्रीटेड होना चाहिए, जैसे आंवला उसमें डाल लिया, लेमन डाल लिया, ठीक है। ब्रीफ में यही है। एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद है फोकस। ये फोकस होता क्या है? फोकस के दो ही मीनिंग है। फोकस बड़ा जेनरिक सा टर्म, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। फोकस का मतलब सिलेक्टिव प्रिपरेशन, सिलेक्टिव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीएस। जीएस में आपको कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा। कॉमर्स में फोकस का मतलब यह है कि अमलगमेशन छोड़ देना है, इफ यू आर नॉट गुड। फाइनल अकाउंट्स पक्का छोड़ देना है, गुड हो या बैड हो। इनकम टैक्स मैं तो सजेस्ट करता हूं छोड़ दीजिए। ये हो गया फोकस, सिलेक्टिव। सो सिलेक्टिव होना है चैप्टर लेवल पे, चैप्टर लेवल पे। और विद इन चैप्टर सिलेक्टिव होना है आपको ट्रिपल टिक और डबल टिक, उस पर ज्यादा फोकस करना है। सिंगल टिक विल डिपेंड अपॉन टाइम, सी वाली चीजों को छोड़ दीजिए। सिंगल टिक एंड सी, राइट, ये तो करना 26 के हिसाब से यू कैन डू ऑल दीज थ्री, क्योंकि कई बार सी टाइप आइटम्स भी आ जाती हैं। आपकी क्वेरी है तो बता सकते हैं, क्योंकि हिचकी आने से पता चला है कि आपकी क्वेरी है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, राइट।
सिलेक्टिव यही है। सिलेक्टिव में जो कोचिंग ले रहे हैं उनको तो आपका टीचर बताएगा क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं ले रहे हैं तो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के अलावा यू हैव टू सी कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इन एनी कंसेप्ट देयर आर जस्ट 2-3 पॉइंट्स ओनली, उस पर 10 मार्कर नहीं पूछेगा यूपीएससी। जैसे साइज कंटीजेंसी थ्योरी बनता नहीं है, इफ देन थ्योरी में भी पॉइंट्स कम है, बनता नहीं है। या समथिंग विच इज आउटडेटेड, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में हमने डिस्कस किया था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, एक थ्योरी थी, हाँ वो आ नहीं सकती, वो पुरानी बात हो गई। ग्लोबलाइजेशन का तो रियलिटी है, अब ग्लोबलाइजेशन पॉइंट ऑफ डिबेट तो है ही नहीं। 30 years back it was point of debate whether country should go for globalization or not, so globalization से related उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क का पॉइंट ही नहीं बनता, तो इट हैज बिकम ए रियलिटी, तो वो नहीं करना। हाँ थॉमसन की जो स्ट्रेटजी है डेफिनेटली दैट इज वेरी प्रैक्टिकल, तो वो करना है। तो यही है फोकस, और कुछ नहीं है फोकस, ठीक है। अब आता है एनवायरनमेंट फॉर कंसिस्टेंसी, एनवायरनमेंट फॉर कंसिस्टेंसी। अगर आपने कंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ा इश्यू है कंसिस्टेंसी। अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपको 6 मंथ तो पता नहीं चलता, 6 मंथ तो कोचिंग में आने जाने में चला जाएगा, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। एक फॉल्स सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी होती है, जरूरी नहीं वो कंसिस्टेंसी, बिकॉज दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय यू। कंसिस्टेंसी अपने आप एक दम नहीं बन सकती, या तो आपकी ग्रेजुएशन लेवल से ही जो ना आदत हो कि आपको पढ़ना ही अच्छा लगता है, तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मेरी तो पढ़ने की आदत है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो कंसिस्टेंसी एक तो कोचिंग के साथ बनी रहती है, दूसरा कंसिस्टेंसी टेस्ट सीरीज के साथ बनी रहती है। अब मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, टेस्ट सीरीज के साथ बनी रहती है। तीसरा कोई क्यूईपी कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, उसके साथ कंसिस्टेंसी बनी रहती है। लेकिन हर समय तो ये नहीं कर सकते ना, कोचिंग तो 6 मंथ की होगी, 18 मंथ क्या करेंगे। सो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपका ग्रुप होना चाहिए, या फैमिली में एनवायरनमेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट। ग्रुप जरूरी नहीं है कि फिजिकल ग्रुप हो कि राजेंद्र नगर में आए यहां पर रूम लें, बहुत ज्यादा ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता था। जो राजेंद्र नगर में रहे हैं दे मस्ट बी हैविंग एक्सपीरियंस कि ऐसा कौन सा डेली आप मंथन कर लेते हैं, ठीक है। बस सुबह शाम पूछने वाला हो आपसे भी और आप भी पूछ सके, मतलब थोड़ा सा जेलसी ग्रुप होना चाहिए, जेलसी ग्रुप। एथिकल ग्रुप छोड़िए यार, जेलसी ग्रुप क्या है, किसी की स्टेटस जान के आपको लगे कि हाँ यार मैंने तो जो है उसको नहीं भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। या मैं पॉजिटिवली कह रहा हूं, जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा जो दुख होता है ना जेलसी का ही होता है। मतलब ऐसा ग्रुप होना चाहिए आप कंपैरिजन कर सकें या दूसरों को कंपैरिजन करवा सकें, उससे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया बनी रहेगी। मतलब आपको 2 दिन में या 3 दिन में अपने बारे में भी बताना चाहिए अपने फ्रेंड को, और फ्रेंड के बारे में भी पूछना चाहिए। फ्रेंड से पूछिए क्या तैयारी का लेवल है, वो कह गया टेस्ट दिया था मेरे तो जब 40, 100 में से सिर्फ 40 आए, ठीक है। आप देखेंगे कि मेरे 52 आए, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आई एम प्रिपेयरिंग ऑन द राइट पाथ। ये मोटिवेशन लेना, ये मतलब कि आई हैव डन वेरी वेल। या फ्रेंड गॉट 52 एंड यू गॉट 40, तो भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। सो आपको कोई ना कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए, 1 और 2 फ्रेंड्स, सिर्फ ये जानने वाले बताने वाला, कोई कंसेप्ट बताए ना बताए इसकी जरूरत नहीं है। आज के दिन आपके पास व्हाट्सएप है, ये सॉरी चैट जीपीटी है, बेस्ट है। कोई कंसेप्ट के लिए ग्रुप नहीं चाहिए, इवन डिबेट डिस्कशन के लिए ग्रुप नहीं चाहिए, डिबेट डिस्कशन के लिए ग्रुप नहीं चाहिए। मेन तू कैसा है और मैं कैसा हूं, ये जानने वाला ग्रुप चाहिए। इसी में पूरी जिंदगी बीत जाती है, इसी में पूरा जो ना आपका टाइम प्रोडक्टिवली यूज हो जाएगा। जो लोनली हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको है। आपने देखा होगा वृद्ध व्यक्ति होते हैं फैमिली में, पार्क में जाके दूसरे वृद्ध व्यक्ति से बात कर लेते हैं, अपनी बता देते हैं, अपने बहू बेटों की बातें कर लेते हैं, उनकी सुन लेते हैं, ठीक है, उनकी बात सुन लेते हैं। वो ज्यादा दुखी है, मैं तो कम दुखी हूं, उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। घर पे आता है सेटिस्फाइड होकर आता है फिर, ठीक है। ग्रुप होना बहुत जरूरी है,
हाँ, अगर आपकी स्टार्टिंग से हैबिट है सोलो पढ़ने की, कंसिस्टेंसी है, जनरली प्रोफेशनल फैमिली में होता है, ये आपकी नेचर ही ऐसी बन गई, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं, जबरदस्ती ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट मेनी कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई दिस, लेकिन ज्यादातर जो कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोनलीनेस के कारण फेस करते हैं, पार्टिकुलरली आफ्टर कोचिंग। कोचिंग के बाद कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। सो कोचिंग के साथ साथ अपना ग्रुप होना चाहिए। कोचिंग में भी डोंट रिमेन अलोन, अगर ले रहे हैं तो लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेल्फ नहीं कर सकते तो कोचिंग के साथ भी नहीं कर पाएंगे। सेल्फ में तो दम होना ही होना चाहिए, कोचिंग वैल्यू एडिशन का काम करेगी। ठीक है। हाँ, और आपको जो कंसिस्टेंसी बनेगी टेस्ट सीरीज से, कंसिस्टेंसी बनेगी जैसे हमने क्यूईपी लॉन्च किया उससे, क्योंकि आपको एहसास करवाया जाएगा कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, वेदर यू इन्वेस्ट यू इंप्रूव दैट वीकनेस और नॉट, बट आपकी कंसिस्टेंसी बना रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी से क्या है, कंसेप्ट के साथ कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। कंसिस्टेंसी का फायदा क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कंसेप्ट, और वेदर वेयर देर इज कॉन्टिन्यूटी देर इज होल्ड ओवर द कंसेप्ट, होल्ड ओवर कंसेप्ट। जैसे ही कॉन्टिन्यूटी टूटी आपका कंसेप्ट के ऊपर से होल्ड टूट जाएगा, राइट। ग्रुप हो, एनवायरमेंट हो, एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टेइंग इन राजेंद्र नगर और यू आर रीडिंग इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, तो इसलिए ज्यादातर लोग लाइब्रेरी में आते हैं ना। लाइब्रेरी में दूसरों को गर्दन, चाहे वो सो रहे हो, उनको देख के लगना कहता है यार आई हैव टू स्टडी, ऑल दे हैव, इन्होंने दुनिया जीत ली है। तो मोटिवेशन चाहिए। ज्यादातर कैंडिडेट्स को एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, कोई 5-7% होंगे जो सेल्फ इंटरनली मोटिवेटेड हैं। एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, इसको अप्रिशिएट करें। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की कमी से टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। कंसिस्टेंसी की कमी से सिर्फ टाइम ही वेस्ट नहीं होता, इससे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ इश्यू आएंगे, फिर फिजिकल हेल्थ इश्यू आएंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी की कमी से कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस टेल्स यू दैट फॉर द पास्ट 3 days यू डिडंट स्टडी। हाँ, और सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि आप अपना यहीं पे ग्रुप बना लो। किसी का व्हाट्सएप ग्रुप तो शेयर कीजिए ना प्लीज, यहाँ पे लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। बैड और गुड पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज एनी व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, रैंकर्स के स्टूडेंट का अपना इनफॉर्मल ग्रुप है, सो हैव ए ग्रुप। ऑनलाइन का ग्रुप हम प्रमोट करते हैं, आप बनाइए अपना, ठीक है। इंटेलिजेंस की बात ही नहीं है, आपके पास एनवायरमेंट नहीं है, इंटेलिजेंस टाइप ही नहीं हो पाएगी, आपकी मेमोरी टाइप ही नहीं हो पाएगी। कंसिस्टेंसी, उसके बाद आएगा नेक्स्ट इज रिवीजन, क्योंकि आपको 15 days के अंदर, एग्जाम डेज में, एग्जाम डेज में 15 days में आपको अपना ब्रेन टैप करना है, पूरी तरह से यूज करना है, राइट। उसके लिए आपको अच्छे वाला रिवीजन होना चाहिए, और रिवीजन आपको एक बार में नहीं कर सकते। आप सोचें कि जून जुलाई अगस्त में जो ना सब कुछ रिवाइज करके डाल लें, अगर सब कुछ रिवाइज करने के करेंगे तो वैसी हालत हो जाएगी, किसी को वोमिट आती है, वोमिट उनको आती है जो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, इवन बीपी भी डाउन होता है। नहीं, वो प्लानिंग का इश्यू है, वो हेल्थ इश्यू नहीं है, वो प्लानिंग का इश्यू है। इफ यू पोस्टपोन मोस्ट ऑफ द रिवीजन फॉर एग्जाम डेज, तो ऐसा होगा। सो रिवीजन इज की टू सक्सेस, और आपका रिवीजन जो है पहले दिन से ही होना चाहिए, फ्रॉम फर्स्ट डे टू 24 months, 24 months ये डेली होना चाहिए, ये 24 month। भूलने की तो आपको चिंता ही नहीं करनी है, डोंट वरी अबाउट फॉरगेटिंग, वरी अबाउट रिवाइजिंग, वरी अबाउट रिवाइजिंग। रिवाइजिंग करेंगे ना तो भूलना 10% होगा, रिवीजन से 15% गेन करेंगे, डिपॉजिट होती जाएंगी चीजें। और भूलना नेचुरल है, और भूलना ह्यूमन नेचर है, और उसकी पावर है, नेचुरल पावर है हमारी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं करना। जैसे डेथ असेंशियल है, इसी तरह भूलना भी असेंशियल है। अगर भूल नहीं पाएंगे तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी, भूल नहीं पाएंगे तो नई चीज अच्छी नहीं लगेगी। कल्पना करो आपके
माइंड में टेस्ट बना रहे, मीठा खाया आपने और मीठे का टेस्ट बना रहा, तो दूसरी बार मीठा नहीं खा पाएंगे। नेचर ने दिया है हमें, ये बहुत बड़ा फीचर है भूलने का। दुख नहीं भूल पाएंगे या सुख नहीं भूल पाएंगे। ओके, और ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा भूलने पे। तो भूलना गॉड गिफ्ट है, जो भी दे रखा है गॉड ने वो सब कुछ जो है पॉजिटिव है। तो हमें करना क्या है, हमें तो करना है चीज को इंटरनलाइज करना है, मतलब चीज को अंदर जो है सोच विचार के, ये नहीं कि रट लिया। एनपीवी अप्रोच कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैसे कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? तो एनपीवी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? कैश फ्लो डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। तो दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसे बोलेंगे इंटरनलाइज। आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है और आपने रट लिया कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं होगा। इंटरनलाइज कीजिए, ज्यादातर चीजों को इंटरनलाइज कर सकते हैं, राइट। इट कंसीडर्स होल प्रोजेक्ट फ्लो, पूरा प्रोजेक्ट का फ्लो करता है कंसीडर एनपीवी। कैसे करता है? बिकॉज वी कैलकुलेट एनपीवी इक्वल टू कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, ये है एनपीवी। और इनफ्लोज में क्या है, ईयर फर्स्ट से लेकर और लास्ट ईयर तक का हम टोटल ले लेते हैं। लास्ट ईयर में हम जो लेते हैं ना, टर्मिनल वैल्यू डिवाइड 1 प्लस के रेज टू पावर एन करते हैं टर्मिनल वैल्यू, मतलब टर्मिनल वैल्यू तक का सारा कैश फ्लो ले लेते हैं। तो ये याद रहना चाहिए कि टर्मिनल वैल्यू तक का कैश फ्लो लेते हैं, दैट्स व्हाई इट कंसीडर्स होल प्रोजेक्ट लाइफ। गॉट इट? उसके बाद है कि इट एंश्योर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे है कि आपने इतना इन्वेस्ट किया और इतना आया, मैंने उल्टा लिख दिया। ओके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा कि ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लो। भाई सरप्लस हो गया ना, सरप्लस। सो सरप्लस मींस वेल्थ। तो आपको फॉर्मूला याद करो, कोई कंसेप्ट को मेमोराइज नहीं करना, उसका जो फॉर्मूला है उसको समझो, अपने ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो एग्जाम डे में अगर आपने फॉर्मूला ऐसी चीज है जो याद रहता ही रहता है। सो यू हैव टू राइट मेरिट्स ऑफ एनपीवी, ठीक है? तो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लीजिए। माँ अपने बेटे की तरफ देख के ना बेटे के सारे फीचर्स बता सकती है, बेटे की सारी आदतें बता सकती है, हालांकि उसके तो मन में याद रहती है, लेकिन फिर भी आपका फ्रेंड आपके सामने आता है तो उसकी अच्छी बुरी बातें जो है ना सारी आ जाती हैं आपके चेहरे अंदर। आ जाती नहीं? आ जाती। कैसे आती है? सामने आने से, फॉर्मूला सामने आ गया। सो इंटरनलाइज करें, इंटरनलाइज नॉट मेमोराइज, क्योंकि आपको कैरी करना है। आज जो पढ़ा हुआ है वो 24 महीने बाद लिखना है। दिसंबर 2024 की चीजें आपको अगस्त 2026 में लिखनी है। कैसे लिख पाओगे? टुडे यू आर रीडिंग बाईबैक, सो मैंने बाईबैक पढ़ा। बाईबैक, तो बाईबैक में मैंने जोर दे देकर बताया कि 3 कंडीशन देखनी है, 3 कंडीशंस, ठीक है? इंटरनलाइज किया हमने, मेमोराइज नहीं किया। 3 कंडीशंस, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल देखा, फिर 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर हमने देखा कि डेट इक्विटी टेस्ट, राइट? इंटरनलाइज करना है। इंटरनलाइज करने का मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रिपरेशन। हाँ, अगर आपका एग्जाम कल या परसों है तो ठीक है, मेमोराइज कर लेंगे, इंटरनलाइज करने की जरूरत भी नहीं, टाइम नहीं है। हाँ, इंटरनलाइज करने के लिए आपको टाइम चाहिए, यू नीड टाइम। क्योंकि इंटरनलाइज तब होता है जब कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में सिंक हो या लॉजिक जाए ब्रेन में। जैसे फूड अनडाइजेस्ट होगा, अगर आपने जल्दी जल्दी खाना खा लिया ना तो स्टोमक में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो सलाइवा है और जो उसके साथ जो एंजाइम्स है वो रिलीज ही नहीं होंगे, टंग रिलीज नहीं करेगी तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्टिव जूसेस बनेंगे नहीं। सिमिलरली द केस ऑफ इंटरनलाइजेशन। अच्छा, इंटरनलाइजेशन का एक सबसे बड़ा है कि बेड टाइम, बेड टाइम रिवीजन, बेड टाइम रिवीजन। बेड टाइम रिवीजन किस लिए? हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस इज 30 टाइम्स पावरफुल देन द कॉन्शियस।
साइंस कहता है 30 टाइम पावरफुल, बट वी यूज इट वेरी लिटिल। सब कॉन्शियस इज 30 टाइम्स पावरफुल देन द कॉन्शियस, बट वी यूज इट वेरी लिटिल। इसको यूज करो ना। कैसे यूज करें? इसको यूज कर सकते हैं आप रात को, कोई टफ प्रॉब्लम है, उसके सिर्फ फीचर्स आप याद कर लीजिए, सुबह उसका 25%, 10%, 5% सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। लेकिन शाम को फीचर्स याद कीजिए। जब आप सेमी स्लीपी स्टेज में हो ना, सेमी स्लीपी स्टेज, उस समय कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है सेमी स्लीपी स्टेज में। फुल स्लीप स्टेज में कॉन्शियस ज्यादा एक्टिव होता है, एंड अवेकिंग उसमें आपका सब कॉन्शियस ज्यादा एक्टिव है। सो नाइट में सोने से पहले एक बार ऑडिट कर लो, क्या क्या पढ़ा था, सिर्फ ऑडिट कर लो, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने का काम आपका सबकॉन्शियस कर रहा है कि आज सुबह अग्रवाल सर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, यस दिस वाज डिस्कस्ड, दिस वाज डिस्कस्ड, टुडे आई वी डिस्कस्ड बायबैक ऑफ शेयर्स वी डिस्कस्ड 3 कंडीशंस। ब्रेन पे जोर मत डालो कि 3 कंडीशंस कौन थी। नो नो नो, योर सबकॉन्शियस अपने आप निकाल लेगा, वो एआई से भी ज्यादा पावरफुल है सबकॉन्शियस। ठीक है, ये काम जरूर करें। इससे न सिर्फ आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी, इससे आपका स्लीप इंप्रूव होगा। स्लीप इंप्रूव होगा, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, मैं आपको बताता हूं। शायद मैं क्लास को मैं बता भी चुका हूं। अगर आप नाइट में कोई चीज रिवाइज किए बगैर सो जाएंगे, आपने मान लीजिए ऑल डे आपने लॉट ऑफ स्टडी किया, सो योर ब्रेन इज जस्ट लाइक बास्केट, और उस बास्केट में जो ना यू स्टडीड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, इस तरह से जो ना वो स्कैटर्ड होती हैं, राइट। एंड इफ यू स्लीप विदाउट रिवाइजिंग और विदाउट राइटिंग, सो योर ब्रेन इज जस्ट लाइक दिस, एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर स्लीप पैटर्न। उसके पीछे क्या टेक्निकल रीजंस होते हैं मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, ठीक है, बट इफ यू रिवाइज इट, सो उनकी फॉर्मेटिंग हो जाती है प्रॉपर, उसकी प्रॉपर लेयर्स बन जाती हैं। एक जैसी चीजें एक तरफ हो जाएंगी, दूसरी टाइप की चीजें दूसरी तरफ हो जाएंगी, राइट, एक जैसी चीजें, सो दे विल सेटल एट देयर रेस्पेक्टिव, एंड योर ब्रेन विल बी हैविंग मोर स्पेस। नॉट ओनली मोर स्पेस, योर ब्रेन विल बी सेटिंग इंटरलिंकेजेस, कनेक्शंस बोलते हैं उसको, कनेक्शंस। Connections will be established, but connections will happen only if you revise at night. उसके लिए आपको 1 घंटा नहीं लगाना, जस्ट 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट सोते समय हैबिट बनाने कि सोते समय ये देखना है मुझे कि आज क्या क्या पढ़ा है मैंने मॉर्निंग में। ज्यादा आलस से आ रहा है तो कम से कम लेजी आ रहे हैं, कम से कम ये सोच लीजिए कि व्हाट आई स्टडीड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। 12 आवर के एक शेड्यूल बना लो कि फर्स्ट आवर मॉर्निंग आई स्टडीड, आई रिवाइज हिस्ट्री, हिस्ट्री में आई रिवाइज दिस। एक हेडिंग तो आपको देखना पड़ेगा, हिस्ट्री से काम नहीं चलेगा। हिस्ट्री में आई रिवाइज मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न आई रिवाइज्ड फ्रीडम फाइटर्स, दिस दिस, ठीक है, इतना बहुत है। देन आफ्टर आई रिवाइज्ड दिस, थोड़ा सा टेक्निकल टच करेंगे ना, जितना टच करेंगे आपको ब्रेन को उतना ही फायदा मिलेगा, नए से तो वो भी अच्छा है। सो इंटरनलाइज होगा, नॉट ओनली इंटरनलाइज, आप मॉर्निंग में आपका ब्रेन कहेगा उठो कुछ और पढ़ो, देयर वुड बी हंगर इन योर ब्रेन टू रीड मोर। और अगर आप ऐसे जो है कचरे की बाल्टी की तरह, कचरे की बास्केट की तरह सोगे, सुबह थकावट मिलेगी आपको, you would be having disinterest in study, and if you sleep like this you will be having interest in your study, right? So daily do this. If recap नहीं करो तो लिखना तो बहुत बेस्ट है, if you write, right, जिसलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जनरलाइजिंग एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, जनरल राइटिंग, जनरलाइजिंग, उससे कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम्स का फॉर्मेटिंग हो जाती है प्रॉपर। अगर आप खुद नहीं कर सकते, फ्रेंड को बुला लो, सुना दो उसको कि चल मैं तुझे बताता हूं कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, या तेरा रिवाइज कराता हूं। वैसे रिवीजन तो अपना हो रहा है, यू टेल द फ्रेंड, उसका भी हो जाएगा। सो यू कैन हैव ए हॉबी ऑफ 5 मिनट रिवीजन ओवर फोन। वन डे आप बताएंगे, वन डे वो बताएगा, अगर आपकी शेड्यूल एक जैसी है तो उससे भी काम चल जाएगा, राइट। मैं अपनी डॉटर से पूछता हूँ,
मेरी डॉटर सीए की तैयारी कर रही है, फाइनल की तैयारी कर रही है, मैं पूछता हूँ बेटा आज क्या क्या स्टडी किया आपने, मैं ध्यान नहीं देता, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बातें बताती रहती है, वो चीजें मैं प्रोविजन मेरे को ध्यान में नहीं है, दिस दिस टीडीएस दिस मैं सारे बता दूं क्या क्या पढ़ा आज, याद हो गया, बेटर मेमोरी, ठीक है। Make understanding your foundation for internalizing. It requires let the concept or idea or feature sink in your brain. और सिंक तब होगा जब आपके पास टाइम होगा, प्रॉपर टाइम। 26 के लिए टाइम है, 25 के लिए यू विल बी रीडिंग इन हरी, कैप्चर नहीं हो पाएगा ब्रेन के अंदर, कनेक्शंस नहीं बन पाएंगे, आपको फिर एग्जाम डेज में ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा विद लॉजिक, नॉट जस्ट फैक्ट, लॉजिक। आई एम श्योर यू रिमेंबर एनपीवी पॉजिटिव्स, बताएंगे एनपीवी के पॉजिटिव्स, एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए एनपीवी का, एनपीवी इक्वल टू ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू माइनस आउटफ्लो, gross present value cash flow of the first year divided by 1 plus r is to power n plus. So terminal value divided by 1 plus r is to power n. Tell me three merits of NPV approach. So ये याद करते आ गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसिडर होल प्रोजेक्ट लाइफ एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। Another is practice strengthens understanding and conceptual whole. Practice, writing practice, solution. So numericals तो definitely numericals can be done through practice only. आपने देखा होगा नाइन्थ एट्थ नाइन्थ स्टैंडर्ड पे या सिक्स सेवन्थ स्टैंडर्ड पे टीचर कंसेप्ट समझाने पे ध्यान देता ही नहीं है, और बच्चे कंसेप्ट समझें कोई जरूरी भी नहीं है, टीचर उनको प्रैक्टिस कराना शुरू कर देता है। सो प्रैक्टिस को भी ब्रेन फॉलो करता है, वो करना जरूरी है, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, लॉजिक याद नहीं आ रहा, प्रैक्टिस कर लीजिए। सो प्रैक्टिस से राइटिंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। मैं कहता हूं इवन ड्यूरिंग प्रीलिम्स you can do it and do it regularly. So numericals and their theory can be done well. तो डेली एक या दो न्यूमेरिकल तो सोल्व करना ही चाहिए। आपने you might have read this Shivani Goyal's, that I was making writing practice of numericals almost daily, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको मेमोरी नहीं लगानी पड़ती, एंड बाय मेमोराइजिंग कंसेप्ट यू कैनॉट आंसर न्यूमेरिकल वेल। आप कितना भी रट लीजिए कि दिस वे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, दिस वे फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, दिस इज डायरेक्ट मेथड, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड, जब तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होगी नहीं कर पाएंगे। तो क्या मैटर करता है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरी में भी करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें इंटरलाइज नहीं कर सकते, आई हैंड माइंड कॉन्टेक्ट होगा, तीन चीजें जो इकट्ठी हो जाती है तो करना है। एंड फ्रीक्वेंसी इज एसेंशियल, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी आपको मतलब हर चीज को डेली ही रिवाइज करना है। सो फॉलो दिस 80-15-5 रूल, फ्रीक्वेंसी एसेंशियल frequency is essential. Follow 80-15-5 rule, or you can follow 85-10. You can follow the rule of 85 is to 10 is to 5 rule. Means daily put your 85% time in main reading. Within 24 hours, put 10% time in revision, detailed revision, and 5% time in brief revision. आप इसको इतना भी कर सकते हो, 90%, 6%, 4%, बट डू दिस, मतलब एक चीज को दिन में 3 बार पढ़ना जरूरी है। डोंट रीड फॉर 1 आवर, कोई भी कंसेप्ट उसको पढ़िए आप 55 मिनट, उसको बंद कर दीजिए। आफ्टर 6 आवर्स और 8 आवर्स, आफ्टर ए टाइम गैप, मतलब धूल जम जाए उसके बाद उसको फिर निकालिए,
फॉर 3-4 मिनट्स रीड इट अगेन, फिर विद इन 24 आवर और सो 1 मिनट और देख लीजिए उसको, हो ही नहीं सकता आप भूल जाए, पक्का नहीं भूल सकते। और खासकर जिनकी रूटीन डिस्टर्ब रहती है, चैलेंजेस रहते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन की लाइफ में चैलेंजेस हैं, घर में मान लीजिए कोई हेल्थ इश्यू है किसी का, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो जनरली कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, राइट। ये कीजिए, कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, फिर ब्रेन की जो ना रिवीजन पावर को यूज कीजिए। मैंने क्लास में भी बताया था 90:6:4, दिन में 10 घंटे का टारगेट है, मैं कहूंगा 9.5 घंटे या 9 घंटे मेन स्टडी कीजिए, 30 मिनट्स एक रिवीजन में, 10 मिनट्स या 8 मिनट्स सेकंड रिवीजन जरूर लगाइए। सेकंड रिवीजन में हेडिंग्स जरूर देख लीजिए, मस्ट सी हेडिंग्स, दिस इज वंडरफुल, वंडरफुल एंड वंडरफुल। आपको 2 साल के बाद कोई कंसेप्ट लिखनी है, अगर आप ये करेंगे तो इससे क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट कम हो जाएगा, बिकॉज इफ यू रीड वंस ओनली इन 24 आवर एंड देर आफ्टर यू आर रीडिंग इट आफ्टर 1 वीक और 1 मंथ, 80% वुड डेप्रिशिएट। आपके ब्रेन पे इतना प्रेशर है, विद इन 1 वीक almost 60-70% depreciates, in more the case 80% depreciates, and if you do it रिवर्स हो जाएगा, यू विल रिटेन 80%, यू विल फॉरगेट 20% ओनली। ट्राई करके देख सकते हैं आप, टाइम उतना ही लगाना है, जस्ट उसको एलोकेट करना है, ठीक है। अनदर, टैप द पावर ऑफ डायग्राम्स, खासकर जो टफ कंसेप्ट्स हैं, ब्रेन को जो ना पिक्चर्स याद रहती है, ब्रेन डजंट रिमेंबर सेंटेंसेस, क्योंकि सेंटेंसेस नेचुरल है ही नहीं, सेंटेंस नेचुरल नहीं है, सेंटेंसेस आर अननेचुरल, पिक्चर्स आर नेचुरल। हमारे सामने ट्री है, वो नेचुरल है, सो ट्री फॉर्म में अगर इंफॉर्मेशन है तो याद रहेगी। जैसे कोई चीज है, उसके 3 एस्पेक्ट हैं, तो 3 एस्पेक्ट को आप ऐसे करके बना दीजिए, याद रहेगा। जैसे मैं बताता हूं सोसाइटी के 3 पिलर्स हैं, आप बताएंगे सोसाइटी के 3 पिलर्स क्या, सोशल एनवायरनमेंट में, यू मस्ट बी एबल टू डू इट, मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे। 3 pillars of society, 3 features or 3 things in society that are to be considered while dealing with environment. So I made a triangle in the class, everyone must be knowing कि एक ट्राइंगल बनाया था, ठीक है। तो आपका ब्रेन जो ना एकदम 3 चीजों को रिकैप कर सकता है। अगर ट्राइंगल नहीं है तो ब्रेन को कोई सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, ब्रेन को कोई सहारा चाहिए। टॉपिक क्या रखा था मैंने, यू रिमेंबर, वैल्यू, एथिक्स, नॉर्म्स, याद हो जाएगा, वैल्यू एथिक्स नॉर्म्स, राइट। और मेक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन में है, फॉर एग्जांपल डब्ल्यू एमबीओ में है, इन केस ऑफ एमबीओ, इन केस ऑफ एमबीओ, इन एमबीओ देयर इज पार्टिसिपेशन, इन एमबीओ देयर इज पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। तो मैंने बताया था पार्टिसिपेशन के 2 फायदे हैं, वन इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एंड सेकंड इज एक्सेप्टेंस, second is acceptance, and both help motivation and hard work, motivation to do hard work, motivation to do hard work। कल क्यूईपी में मैंने यूनिट नंबर 3 के ऊपर डायग्राम्स बनाए थे, आप सभी के पास भेजेंगे मिस्टर वैद्य, मोहित अपने क्लास में शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। डायग्राम बनाए थे, सो डायग्राम से पूरा जो है यूनिट नंबर 3 याद हो गया, मुझे भी याद हो गया, इवन मुझे भी कहीं कहीं इनक्लैरिटी रहती थी, सर फेयर करके करता हूं, अच्छा फेयर करके शेयर करेंगे सभी के साथ, ठीक है, आपके पास टाइम है, फेयर करके, ठीक है। डायग्राम आप, तो डायग्राम की पावर यूज कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सोशल सब सिस्टम, पावर सब सिस्टम एंड टेक्निकल सब सिस्टम, वैसे बताते हैं ना, सोशल पावर टेक्निकल याद नहीं रहता, ये डायग्राम बन गया, डायग्राम यूज कीजिए, ठीक है। एक्रोनिम यूज कीजिए, ये तो वेल एस्टेब्लिश टेक्निक्स हैं,
these are not new. ठीक है, so I won't take much time on these. राइट, एक्रोनिम्स यूज कीजिए। मैं बता रहा हूं मैंने यूज किया था कैश बुक, आज भी याद है कैश बुक। कैश बुक एक एक्रोनिम है फॉर द रिवर्स दैट आर फ्लोइंग फ्रॉम गुजरात टू एमपी। उनका एक चेनाब, रावी, सोन, चेनाब, केन, सोन, रावी, ऐसा कुछ है कैश बुक। बेतवा, अभी भी वो याद है। एक्रोनिम ये यूज करनी चाहिए कहीं कहीं, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना। बहुत ज्यादा यूज करोगे ना तो वो यूजलेस हो जाएगी टेक्निक, मतलब रेसिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी बॉडी की या दिमाग की, फिर यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर। राइट, हाँ, की फीचर्स को बहुत ज्यादा याद कीजिए। की फीचर्स ये बहुत जरूरी है। की फीचर्स, मैं कहता हूं किसी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इफ यू रिमेंबर की फीचर्स वेरी वेल, यू कैन टेल व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स। मान लीजिए मैं एक स्नेक के की फीचर्स बता दूं। स्नेक के की फीचर्स कि स्नेक इज हैविंग टिथ, स्नेक इज हैविंग पॉइजन, स्नेक इज हैविंग दैट इज डायमंड आल्सो, क्या बोलते हैं उसको, जेम। राइट, snake is having these bones, snake is having this kind of that is muscles। ठीक है, snake is having these balls। आप नहीं बता देंगे कि these are the benefits of the snake and these are the harmful side। फाउंडेशन people please text me personally, I will share it। ऐसा करना मोहित वैद, आप मेरे साथ शेयर कर देना, मैं फाउंडेशन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी काफी कुछ जो ना ऑन द स्पॉट बनाया था। सो की फीचर्स के ऊपर बहुत ध्यान लगाइए। की फीचर्स, key features, it will help you not only to know positives, negatives also, and suggestions also, and suggestions also। आपको एक कंसेप्ट पता है, इंट्यूशन। व्हाट इज इंट्यूशन? व्हाट इज इंट्यूशन? इंट्यूशन इज a sound from your brain or a message from your brain that this is going to happen। really that is not a blind trust or blind faith। इंटेलिजेंस गैस है। रियली इंटेलिजेंस गैस इज बेस्ड अपॉन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे एआई रीड करता है वैसे हमारा ब्रेन भी इंफॉर्मेशन को रीड करता है। इफ यू गिव योर ब्रेन these 5 facts, 6 facts, and you understand these 6 facts very well, your brain can generate a seventh fact। seventh fact, जैसे खासकर आपका जो टीचर है या आपके जो पेरेंट्स हैं, ये बता सकते हैं कि आप कहां पर फेल हो सकते हो, कहां पर पास हो सकते हो, कहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, कहां पर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज दे आर हैविंग नॉलेज अबाउट यू, नॉट ओनली नॉलेज अबाउट यू, उनका एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है। तो प्रिडिक्शंस कर सकते हैं वो, प्रिडिक्शंस, जबकि आपने वैसा सिचुएशन पहले नहीं देखा था। सो इफ यू रिमेंबर की फीचर्स, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू जनरेट पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं कि डोंट ट्रीट पॉजिटिव नेगेटिव, बट डोंट रिलाई अपॉन मेमोरी फॉर पॉजिटिव नेगेटिव, रादर रिलाई अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर गिवन 6 benefits and 6 limitations, out of 6, 3 to 4 can be generated by you out of features। एंड आज के दिन तो चैट जीपीटी आ गया, किसी भी कंसेप्ट के पॉजिटिव नेगेटिव जानने हो तो लिख दीजिए उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी अलोंग विद द फीचर्स। तो चैट जीपीटी आपको देगा फीचर, उसका पॉजिटिव क्या है, उसका नेगेटिव क्या है, अलोंग विद लॉजिक देगा। सो यू कैन लर्न देयर फ्रॉम आल्सो। फनी आइडियाज, जो चीज टफ है उसके ऊपर फनी आइडिया डेवलप कर लीजिए। ठीक है, फनी आइडिया तो ब्रेन को बहुत ज्यादा याद रहता है। अभी मैं बताया ना, आज भी मुझे नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स उनका सीक्वेंस याद है। 1998 में सीक्वेंस याद किया था, गंगा जमुना की मिट्टी घाघरे में डालकर डाक से कोसी ले जाई गई। ये मेरे को स्टेटमेंट याद है। घाघरा जो ना, बस वो ब्रेन के लिए कैची वर्ड है, घाघरा। गंगा जमुना गोमती गंडक घग्गर कोसी, दिस इज द सीक्वेंस। हालांकि इसका भी लिमिटेड यूज है, हर जगह नहीं बना सकते,
बट जहां टफ लगे बना लीजिए। एक मेरे को याद नहीं हो रहा था थिंकर, एक पर्सन का नाम याद नहीं हो रहा था, डेनिस एंड गोल्ड का नाम याद नहीं हो रहा था। डेनिस एंड गोल्ड, डेनिस एंड गोल्ड। तो इसमें है लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, डेनिस एंड गोल्ड का केस है। सो डेनिस एंड गोल्ड याद नहीं हो रहा था, तो मुझे याद किया कि एक जीन्स है, जीन्स दैट इज ट्राउजर, वो गोल्ड की बनी हुई है। सो जीन्स को मैंने डेनिस से कनेक्ट किया। तो जहां पर भी थोड़ा बहुत टफ आए कुछ कीजिए, मतलब हर जगह ये नहीं कि हर बनाए। एंड आई सेड ग्रुप पहले बता चुका हूं, ग्रुप स्टडी और डिस्कशन ऑफ टफ कंसेप्ट एंड इश्यूज कर लीजिए, पक्का कीजिए। आई विल से ऐसे प्रिपरेशन आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप ऐसे में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो मंत्रा इज हैव वीकली डिस्कशन, वीकली डिस्कशन ऑन ऐसे, ठीक है, मेरा एरिया नहीं है, वीकली, वीकली आइडिया शेयरिंग ऑन प्री डिफाइंड टॉपिक, डिफाइंड टॉपिक जरूर कीजिए ये, ठीक है। बट विद इन द वीक डोंट डिस्कस, अगर विद इन द वीक हमने डिस्कस कर लिया तो संडे को आप डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे, राइट। व्हाट सोर्सेज यू आर रीडिंग वो भी शेयर नहीं करना, जस्ट यू डिसाइड ए टॉपिक दैट कमिंग संडे वी विल डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ एआई फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन, फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ऑन संडे व्हाट्सएप पे कीजिए, ऑन व्हाट्सएप पे यू शेयर व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स, योर फ्रेंड विल शेयर एंड एवरीवन विल रीड पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स गिवन बाय अनदर पर्सन, ठीक है। हाँ, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे की तैयारी करने के लिए स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस एआई, इन एआई वी विल डिस्कस फर्स्ट एरिया क्या है एआई का, सेकंड एप्लीकेशंस क्या है एआई के, थर्ड इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, पॉजिटिव्स हम देखेंगे एजुकेशन के सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशंस में, विल सी नेगेटिव्स इन 5 एरियाज, विल सी सजेशंस, राइट। सो इस तरह से आप कैटेगराइज कर लीजिए, 2 to 3%, 4 भी हो जाए, कोऑपरेटिव नेचर के हैं तो काफी हो सकते हैं, बट ऐसे पे कोऑपरेशन जरूर करना चाहिए आप लोगों को, थीम लेकर उस थीम पे डिस्कस कीजिए। हाँ, कॉमर्स में भी ऐसा कर सकते हैं, कॉमर्स में जो टफ एरियाज हैं एक दूसरे को बता दो कि माई टफ एरिया इज बाईबैक ऑफ शेयर्स, सो एनीवन प्लीज हेल्प मी, ठीक है, और हेल्प कीजिए, सामने वाले को समझ आया नहीं आया, यू विल रिमेंबर इट। अपना एक स्टूडेंट है जिसको मैं जीनियस बोलता हूं, कार्तिक, हिज आईएएस नाउ, ही वॉज रेडी टू हेल्प एनीवन, एवरीवन। एक दिन सेशन रखेंगे उनका, कार्तिक, जीनियस, आई कॉल हिम जीनियस बिकॉज ही इज रियली जीनियस, मतलब उसके पास कैपेसिटी थी कि 2 दिन में इनकम टैक्स की बुक पटा देता था वो, इतनी कैपेसिटी। सो इन द क्लास ही वाज हेल्पिंग एवरीवन, रादर ही वाज सर्चिंग फॉर समवन आस्क फॉर हेल्प, ही ट्राइड टू हेल्प एवरीवन वेरी वेल, इवन मुझे भी मॉडल आंसर तैयार करके देता था कार्तिक, जीनियस, राइट। और अब उन्होंने जो है महाराष्ट्र में एक म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो लॉस में था, अब उसने पहले तो उसको एट उस पे नो प्रॉफिट नो लॉस पर लेकर आया, अब सरप्लस जनरेट होना स्टार्ट हो गया उसमें, सरप्लस जनरेट होना, पब्लिक को बिल्कुल तंग नहीं किया उसने। उसने जो पुराने पुराने जो लोग नहीं देते थे ना टैक्सेज, 20 साल पुराना, उनके ऊपर टैक्स लगाया, इंटरेस्ट लगाया, पेनल्टी लगाया, उनको बिल भेजा, पॉलिटिकल पार्टी को पहले कॉन्फिडेंस में लिया, राइट। सो बी हेल्पफुल, और ये मत सोचना कि मेरे पास ये यूनिक आइडिया है इट विल बी शेयर्ड, नहीं, ऐसे कुछ खास बात नहीं। आज के दिन चैट जीपीटी में शेयर करिए, हाँ विद इन ग्रुप शेयर कीजिए, आप ग्रुप के कंक्लूजन को बाहर शेयर मत करो, ठीक है। एंड थिंक इट इज लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, नो टाइम इन फ्यूचर, आई एम टॉकिंग अबाउट रिविजन, रिविजन एंड मेमोरी। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो वैसे ही काम करता है जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, दिस इज फूलिश। अगर आप को एहसास कराओगे ना कि तुम तो मरने वाले हो, कोई पर्सन आपको कह दे कि आपको तो कैंसर डिटेक्ट हो गया और विद इन 3 days आपकी डेथ हो जाएगी, चलो डेथ तो नहीं होगी, लेकिन योर एनर्जी लेवल विल गो डाउन सब्सटेंशियली, ट्रू और नॉट, यू विल बी ब्रोकन बाय इमोशंस, ट्रू और नॉट, बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है वो काम नहीं करेंगे, ट्रू और नॉट। ब्रेन कितनी चीजों को याद रखता है या भूलता है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सख्त इंस्ट्रक्शन देते हैं।
अगर आपको ब्रेन कहेंगे कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, योर ब्रेन वोंट रिमेंबर। और इमेजिन कि आपको जो है कोई आपके खिलाफ कोई केस है, डेथ पेनल्टी का केस चल रहा है, एंड आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है कल। आप 20 पेज की 100 पेज की बुक पढ़ेंगे ना, उसका एक एक पॉइंट आपको याद रहेगा। तब मेमोरी कहां से आ गई? ठीक है। ब्रेन को कहिए आप बहुत बड़े एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं, इतना लाइटली नहीं लेना। एंड टुडे इज द लास्ट डे टू प्रिपेयर इट। बाद में मुझे टाइम नहीं मिलने वाला, कल मेरे पास दूसरा चैप्टर आने वाला है, परसों तीसरा चैप्टर आने वाला है। जून जुलाई के अंदर हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, मेरे को टाइम मिले नहीं मिले, मुझे आराम भी करना है, मुझे मस्ती भी करनी है। मेरे को सिर्फ पढ़ने के लिए काम थोड़ी है, मेरे पास बार बार रिवाइज करने का टाइम नहीं है। जितना पढ़ना है आज पढ़ लो, मतलब ब्रेन का साथ मत दो। ब्रेन को जो है ना, मेमोरी को, ब्रेन को डांट के रखो। उसको कहिए दिस इज द लास्ट मोमेंट इन लाइफ टू रिवाइज, नो टाइम इन फ्यूचर। आप देखिए चीजें याद रहेंगी, आप देखिए फोकस बन जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, ब्रेन के ऊपर पिस्टल रख दिया, तो पिस्टल रख दीजिए, उसके ऊपर एक इमेजिनरी पिस्टल, टेक केयर, इमेजिनरी पिस्टल, वर्चुअल पिस्टल, कि दिस इज द लास्ट मोमेंट। ठीक है। अनदर, ट्रस्ट योर नेचुरल एंड सिक्वेंशियल पावर। कई बार हम डाउट कर लेते हैं, सेल्फ डाउट, पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा। अरे याद रहेगा। हम डाउट कर लेते हैं। हमारा ब्रेन जो है, किसी चीज को अगर आपने इंटरेस्ट से पढ़ा है, किसी चीज को लॉजिकली पढ़ा है, फोकस्ड होकर पढ़ा है, विदाउट डिस्टर्बेंस पढ़ा है, द मोमेंट यू विल गेट द सिचुएशन, यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट। एक बार मैं इसका टाइम देख लेता हूँ, कहीं टाइम तो ओवर नहीं कर दिया। मीटिंग का टाइम कहाँ मिलेगा? मीटिंग का टाइम एनीवन कैन हेल्प? मीट टाइम कहाँ पर होता है इसमें? ड्यूरेशन ऑफ द मीट, ड्यूरेशन ऑफ द मीट कहाँ मिलेगा? मोर में, पोज रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट, कैप्शन, रीसेट टू डिफॉल्ट। चलिए कोई तो बताएगा। सो ट्रस्ट रख रहा हूं मैं कि कोई तो बताएगा। व्हाई आई शुड वर्री? ठीक है, तो ट्रस्ट योर नेचुरल एंड सीक्वेंशियल मेमोरी, वेरीफाइड सेल्फ बिलीफ इज एसेंशियल। वेरीफाइड सेल्फ बिलीफ का मतलब एक बार आप ट्राई करके देखिए। समटाइम्स हम भूल जाते हैं कि समटाइम्स वी अंडर एस्टिमेट अवर मेमोरी पावर, लेकिन वो होती है जब प्रॉपरली आप एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में रिवाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली चीजें याद आ जाती हैं की पॉइंट आने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से यू, इफ आई से यू if I say you net income approach of capital structure planning, net income approach to capital structure theory, net income approach, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में नहीं आएगा इट इज रिलेटेड टू यूज ऑफ डेट विद इक्विटी, रेलिवेंसी वर्सेज इरेलीवेंसी, इरेलीवेंसी मोदिग्लियानी and not operating income approach, relevancy net income approach. Manage participants option. So things would come. Trust करें. I know most of you don't trust, but few candidates डोंट ट्रस्ट। एग्जाम डेज में ऐसा ना सोचे कि आपने रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम डेज में तो तहस नहस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन सामने आते ही, ठीक है, सारी चीजें साइड में हो जाती हैं। आपका ब्रेन इतना पावरफुल है, छोटा सा हिंट मिल जाए। आपने देखा होगा, क्योंकि मैं तो उनके साथ रहा हूं ना जो नकलची रहे हैं, और नकलची की आदत मेरे ऊपर भी आई हुई है, लेकिन मैंने कभी एग्जामिनेशन हॉल में नकल नहीं की। हाँ, जैसे ही मान लीजिए कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं, क्वेश्चन दैट वाज नॉट स्टडीड वेल, थोड़ा सा मुझे हिंट मिल जाए बस उसके बारे में, इन एग्जामिनेशन हॉल योर ब्रेन इज सो फोकस्ड दैट यू गेट ए लिटिल हिंट एंड यू कैन राइट ए लॉट। ट्रस्ट इट। उसके बाद है 10x रिवीजन क्वालिटी, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है 10x रिवीजन क्वालिटी। ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स फील इनर्शिया, इनर्शिया फील करते कि सर पढ़ रहा हूं अंदर नहीं जा रहा है। हाउ मेनी फील? यस लिखे यहां पर जो फील कर रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं अंदर नहीं जा रहा है या इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। स्टॉप में व्यू के बाद
स्टॉप में व्यू के बाद स्टॉप में व्यू के बाद कहाँ पर है? आई थिंक 2 आवर्स का तो लगा रखा होगा मंजीत ने। चलो एक बार मैं लॉग इन करके ना इसको वो कर लेता हूँ। हम्म, अ, हाँ 5 to 7 है, ठीक है। वी आर हैविंग 2 आवर्स, राइट, वी आर हैविंग। सो प्रॉब्लम पता है किस चीज की है? प्रॉब्लम इज वी डोंट रिवाइज प्रॉपरली। हम क्या करते हैं, वो चीज रिवाइज करते हैं जो ऑलरेडी जानते हैं। आपने अभी अभी रसगुल्ला खाया है, 5 रसगुल्ले खा लिए आपने। इफ वी गिव यू 6th रसगुल्ला, कैन यू एंजॉय इट और नॉट? कैन नॉट एंजॉय, ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम इज द सिचुएशन विद द रिविजन। इफ थिंग्स आर ऑलरेडी इन योर माइंड एंड यू फोर्स योर ब्रेन टू रिवाइज देम अगेन, नहीं, you have to devise an innovative means of revision, or you have to devise a mechanism uh, that works with the existing memory. तो उस केस में क्या है, बुक से रिवाइज मत करो, यू मेक मेंटल रिवीजन। कि मेंटल जो इमेजिनेशन कीजिए कि फॉर एग्जांपल कोलिशन कार्नेगी मॉडल इज देयर, सो बिफोर रीडिंग द बुक पहले ब्रेन में तो ऑडिट कर लीजिए, कार्नेगी मॉडल इट इज अगेंस्ट रैशनैलिटी, गुड। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, 3 thinkers आर देयर गुड दैट आर, हार्वर्ड साइमन इज देयर, साइट था और एक और था, मार्क था, क्या था वो भूल गया, वो देख लेना। साइमन गेव वन कंसेप्ट, नो नो साइमन गेव 2 concepts, मार्च एंड साइट गेव वन कंसेप्ट। जहां पर भी अटक रहे हैं, डोंट सी इमीडिएटली। In this manner, revise, chances 70 to 80% you will revise without watching. This revision would be interesting also. Not only interesting, this revision would be more retainable, more sustainable also. वो चीज़ आप नहीं भूलेंगे। 10x रिवीजन क्वालिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, हालांकि 2 साल पुराना है, बट यू शुड सी दैट, अपने यूट्यूब चैनल पे भी है। 10x रिवीजन क्वालिटी रैंकर्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी है, राइट। उसके बाद जो है जल्दी से हैंड आउट, क्योंकि मैंने आई हैव टाइप्ड एवरीथिंग इन द हैंड आउट, ठीक है, कुछ चैट जीपीटी का मैंने हेल्प लिया। सो देर आर 7 phases ऑफ योर टोटल प्रिपरेशन, 7 phases ऑफ योर टोटल प्रिपरेशन। विदाउट 7 phases, एक भी फेज अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे, if you compromise with either of these 7 phases, cannot get a perfect score or very good score. Definitely, first phase is foundation phase. First phase 1 is फाउंडेशन फेज, ऊपर आ गया ये फाउंडेशन फेज, फाउंडेशन बिल्डिंग फेज, December 24 to May 25। सर्टेन स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रिपेयरिंग कॉमर्स सिंस सितंबर और अक्टूबर, सो उनका हो जाएगा सितंबर से लेकर फरवरी तक, ठीक है। सो दिस टाइम फ्रेम वुड चेंज। ड्यूरिंग दिस फेज यू हैव टू कवर योर सिलेबस एंड योर एक्सपेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर अपियरिंग 26, 25 के लिए मेरा फोकस ही नहीं है, 26। So during this phase, cover the entire syllabus. Be aware about most important things and their conceptual clarity. Won't be having high level of memory, but if you follow 98 and 2% rule और 90-96, वो वेरिएबल है, वो ऐसा नहीं हो सके परफेक्टली आपको ऐसे ही पढ़ना है। बट इफ यू फॉलो द रूल ऑफ रीडिंग 9 hours, revising for 40 minutes, thereafter revising for 20 minutes, you will be having great hold. So during this phase, you must become aware about all the things of your syllabus and have good understanding of important things. 30 to 40% important होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 30 to 40% नॉर्मल होता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। रिमेनिंग 30% मेमोरी डिमांडिंग होता है, उसकी वरी नहीं करना। ड्यूरिंग दिस 6 months, you won't be having hold over optional.
and you should write small tests, just like we conduct test of 1 question 2 question on Tuesday, Thursday and Saturday, वो करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्विक रिविजन पॉडकास्ट और दूसरी चीजों के बारे में भी दे रखा है, एंड आई हैव गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज चैट जीपीटी आल्सो, वो भी करना है। राइट, हाँ मैंने रैंकर्स के नोट को यहाँ पर बेस बनाया है, रैंकर्स के नोट्स को बेस बनाएं, दोज हु आर टेकिंग कोचिंग, नॉट टेकिंग कोचिंग, बेस बनाइए। इफ यू फील दैट हेयर समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज आउटडेटेड, कोई किताब नहीं देखनी, अब आपके पास है चैट जीपीटी। न्यूमेरिकल्स में चैट जीपीटी गड़बड़ करता है, ठीक है, थ्योरी में चैट जीपीटी गड़बड़ नहीं करता। हाँ, यू शुड मेक सर्च विद प्रॉपर वर्ड्स, आपको क्या सर्च करना उसकी डिटेल लिखिए। यू वांट फीचर्स, यू वांट assumptions, you want positives, you want negatives, word limit लगाइए। you ask chat gpt give me answer in points form, give me corporate examples, corporate example के ब्रैकेट में लिखिए मुझे चाहिए corporate example, religious example also, government example also, security forces, क्लासरूम वालों को मैं अच्छी तरह से सिखा चुका हूँ। राइट, एंड ड्यूरिंग दिस पीवाईक्यू पूरा कवर नहीं होगा, जस्ट रीडिंग एंड क्लासेज ही हो पाएगा ड्यूरिंग 6 months। But if you are preparing commerce only, then you will be able to do PYQs also. But everyone is preparing GS, and it is not suggested that you should. सर एक सुपर कलाम यूपीएससी स्पेसिफिक एआई भी है, वो कैसा है मुझे पता नहीं है। ठीक है, सो during this, those who have already joined GS coaching, no problem. But during this 6-month period, you put 60-70% time on commerce, 40% time on GS है, क्योंकि अगर आपने जीएस की भी कोचिंग ज्वाइन कर ली और कॉमर्स भी कर रहे हो, योर शेड्यूल विल बी वेरी हेक्टिक, न आपका जीएस पे होल्ड हो पाएगा और न कॉमर्स पे होल्ड हो पाएगा, दैट वुड बी हार्मफुल। 6 month, दैट इज अप टू द मंथ ऑफ मे। हाँ, 50% कॉमर्स होने के बाद यू कैन ज्वाइन योर जीएस क्लासेस। मान लीजिए दिसंबर में शुरू किया है, किसी ने नवंबर में शुरू किया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 40% सिलेबस हो गया, 50% हो गया, देयर आफ्टर इन द मंथ ऑफ मार्च यू कैन ज्वाइन योर जीएस कोचिंग, क्योंकि जीएस की कोचिंग में भी 10-12 मंथ्स लगते हैं, उसका फिर रिवीजन भी करना है आपको। राइट, सो हेयर आई हैव गिवन यू द शेड्यूल फॉर 6 मंथ से, रैंकर्स नोट टू बी स्टडीड, एआई की हेल्प कहाँ कहाँ लेनी है, आंसर राइटिंग कैसे कैसे करनी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, फॉर्मेट एंड फॉर्मूलाज। आई हैव गिवन रेफरेंस टू रैंकर्स मटेरियल्स एंड रैंकर्स थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास उसका कोई मार्केट का सब्सिट्यूट है नहीं, अदरवाइज आई कुड गिव सब्सिट्यूट देयर ऑफ आल्सो। ठीक है, फर्स्ट पेपर और पेपर 2 वो भी लिख दिया मैंने, क्या कवर नहीं करना वो भी लिख दिया आयुषी जायसवाल, कि टेक्स्ट के न्यूमेरिकल नहीं करना है, अमलगमेशन ओनली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज आल्सो रिटन। राइट, वो लिख दिया है मैंने। ठीक है, हाँ, ड्यूरिंग दिस टाइम यू शुड डू सेल्फ स्टडी ऑफ जीएस, assuming that you have just started preparation in the month of September or October. But those who have already joined GS, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा टू कवर बोथ द थिंग्स, वो भी बैड नहीं है। टिल विच ईयर पीवाईक्यू शुड बी कवर्ड, डेफिनेटली 1/3 ओनली। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी पीवाईक्यू मत देखो। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज यू शुड सी ईदर इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइजेस। ठीक है, 3 चीजें होती हैं, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज एंड पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल्स में। सो सी वन ऑफ देम ओनली, यू कैन सी पीवाईक्यूज ओनली। ठीक है, डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दिस 6 months, बिकॉज दिस इज द पीरियड ऑफ मेकिंग द बेस। हाँ, थ्योरी के अंदर जो है, बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, वही कीजिए। पीवाईक्यू आपको करना चाहिए सेकेंड फेज पे। अच्छा, मैंने एक टेंटेटिव 10 आवर्स रीडिंग शेड्यूल भी दे रखा है, सिर्फ फॉर ए गाइडेंस पर्पज। एवरीवन वुड बी हैविंग ओन शेड्यूल, दिस इज अ टेंटेटिव शेड्यूल, सिर्फ रेफरेंस के लिए, so that you may feel confident about it. You might be preparing more strict schedule, right? But this is a sustainable schedule, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, की एडजस्टमेंट फॉर जीएस एंड कॉमर्स बैलेंस, दैट इज रिटन हेयर, 5-6 hours टू कॉमर्स आपको देना 6 month तक ओनली। उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा। आफ्टर दिस यू विल बी गिविंग, अभी नहीं, यू विल बी गिविंग 3 hours or 2.5 hours to
कॉमर्स एंड 7-8 आवर्स टू जीएस, वो देंगे आप सेकेंड फेज पे। फेज 2, फेज 2 में आपको कॉमर्स को देना है अराउंड 3 आवर्स और फिर जीएस को देना आपको 7 to 8 आवर्स, राइट। डेफिनेटली फेज 2 में आपको अपने चैप्टर लेवल के टेस्ट जरूर लिखने हैं। फेज 1 में जो चैप्टर लेवल टेस्ट नहीं लिख पाते हैं या कम लिख पाते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं कर पाएंगे। 1/3 इन पीवाईक्यूज, 1/3 इन पीवाईक्यूज, मैंने 1/3 ऑफ द पीवाईक्यूज। इतना चिल्ला रही पीछे से, प्लीज दीपांशु एक बार बंद करेंगे, म्यूट म्यूट करेंगे। Sounds from south also. Any other sound? अब 1/3 में भूल गया मैंने कहाँ टाइप किया था। So phase 2. So phase 2, that is revision plan, June 25 to September 2025. That would be revision, right? It will take around 4 months. 4 से ज्यादा लगेंगे, 4 month में पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा, because you will be putting just 3 to 4 hours. If you can put 6 hours, तो फिर 3 months में रिवीजन हो जाएगा। And during this phase, must write chapter level test. चैप्टर लेवल टेस्ट आप जरूर लिखिए उस फेज पे। सेकंड रिवीजन चैप्टर लेवल टेस्ट, ठीक है। हमने क्यूपी का कोर्स लॉन्च कर रखा है। दोज हु वांट टू डू क्यूपी कैन गो फॉर क्यूपी आल्सो। डेफिनेटली आपको नया कंटेंट भी मिलेगा, नया रिवीजन भी मिलेगा। वी आर पुटिंग कंटेंट्स ऑफ क्यूपी इन फाउंडेशन कोर्स आल्सो, एडवांस्ड कोर्स आल्सो, लेकिन क्योंकि वहां पर हमारा बेसिक्स कवर करने पे ज्यादा रहता है, सो आई एम एबल टू पुट जस्ट 10-15% ऑफ द क्यूपी कंटेंट। So those who are interested in QEP, Mr. Ved, Mohit Ved, come for QEP during the month of June, July, August, September. जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी नहीं, अभी आप एक बार सिलेबस को कवर कर लो, ठीक है। क्यूपी कर लिया तो क्या होगा, आपका हायर लेवल की तैयारी हो जाएगी, बेसिक की तैयारी नहीं हो पाएगी। मतलब सेंटेंस आपको बनाने आगे एबीसीडी नहीं आया तो एबीसीडी सीखना जरूरी है, ठीक है। सो क्यूपी कर सकते हैं। क्यूपी नहीं करते हैं तो डेफिनेटली सेल्फ असेसमेंट करना ही होगा, लेकिन सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको जो है एक सेल्फ अपनी शेड्यूल बनानी पड़ेगी। टेस्ट पेपर हमारे भी मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। टेस्ट पेपर आज के दिन आप टेस्ट क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हैं। जो सेल्फ स्टडी करना चाहें, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा सेल्फ स्टडी, राइट, वो कीजिए। रेगुलर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस का शेड्यूल बना रखा है, थ्योरी की प्रैक्टिस का बता रखा है, रिटेंशन और स्ट्रेटजी बताया। रिटेंशन स्ट्रेटजी पे तो हमने काफी डिस्कस किया है, राइट। उसके बाद आता है, और मैंने यहाँ पर भी 10 आवर शेड्यूल बना दी है, 10 आवर शेड्यूल इन सेकंड फेज, ठीक है। कि क्योंकि उसमें जीएस को ज्यादा टाइम लगाना है, कॉमर्स को टाइम कम लगाना है। फिर एक बार शेड्यूल बना दिया मैंने, सो यू कैन कस्टमाइज इट। अच्छा, 1/3 पीवाईक्यू मींस डोंट कवर ऑल द पीवाईक्यूज। फाउंडेशन फेज पे सारे पीवाईक्यू नहीं कवर कर सकते, टाइम नहीं है पहली बात। दूसरी बात यह है कि पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पूरी अंडरस्टैंडिंग अगर पीवाईक्यू की आगे तो यू आर सुटेबल फॉर मेंस। फिर बाकी क्या रह जा, फिर 18 मंथ की जरूरत ही नहीं है ना, 6 मंथ में कॉमर्स तैयार हो गया, राइट। सो 1/3 ऑफ द पीवाईक्यूज ओनली। इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड क्वेश्चन शुड बी सीन। यू रीड पीवाईक्यूज, यू मस्ट बी एबल टू आंसर 1/3 ऑफ द पीवाईक्यू। सो इन फाउंडेशन फेज जो आपको इजी लगते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स जिसे बोलते हैं, उनको कर लो। कि चलो टफ क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा, मेरा टाइम भी आएगा, अभी जो है ना मेरा यही टाइम है, अभी मैं जो ना केजी में हूँ, किंडरगार्टन में हूँ, राइट। आई विल पास द मिडिल आल्सो, ग्रेजुएट आल्सो। थर्ड फेज, थर्ड फेज पे, थर्ड फेज आपका होगा नवंबर दिसंबर जनवरी। थर्ड फेज नवंबर दिसंबर जनवरी, दैट इज आल्सो एसेंशियल। उस फेज में आपको आंसर राइटिंग जरूर करना है थर्ड फेज में, क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है, प्रलिम्स के बाद का टाइम कम कर रहा है। प्रलिम्स के बाद का टाइम कम कर रहा है यूपीएससी। पहले तो क्या था, 3 मंथ से ज्यादा मिलते, 3.5 मंथ मिलते थे, लेकिन अब अच्छा जून जुलाई अगस्त सितंबर में अगर आपने टेस्ट सीरीज मान ली ज्वाइन कर ली 25 में, और नेक्स्ट ईयर फिर सीधे लिखेंगे तो दैट वुड बी टू लेट। तो आपको नवंबर दिसंबर जनवरी या दिसंबर जनवरी फरवरी, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को अभी 3 दिसंबर से टेस्ट दे रहे हैं, सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी में सब्जेक्ट टेस्ट कीजिए।
सब्जेक्ट टेस्ट नहीं तो डेली आंसर राइटिंग कीजिए डॉ, रैंकर्स में अवेलेबल होगी उस समय भी, ठीक है। पहले अगर क्यूईपी नहीं किए तो फिर दिसंबर जनवरी फरवरी में क्यूईपी कीजिए। तीनों में से एक करना है, तीनों नहीं करना है, क्योंकि तीनों में टेस्ट इंक्लूडेड है, क्यूईपी में भी टेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। डा में तो टेस्ट है ही है, हिम्मत होनी चाहिए डा करने की, ठीक है। अदरवाइज स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज करना है, क्योंकि आप अच्छा स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज में भी चैप्टर लेवल के सब्जेक्ट लेवल के टेस्ट करने हैं। चैप्टर लेवल आप जून जुलाई अगस्त सितंबर 25 में कर चुके हैं, सेकंड फेज में चैप्टर लेवल के टेस्ट कर चुके हैं। थर्ड फेज में आपको इधर क्यूपी करना है और डेली आंसर राइटिंग करना है, और मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, और आप स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। हमने स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज पहली बार दिसंबर से शुरू किया है, क्योंकि यूपीएससी इज रिड्यूसिंग द टाइम। जो पिछले 2 साल के क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, लास्ट ईयर वालों को भी, साल वालों को स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज अभी मिल रही है, दैट इज पार्ट ऑफ द कोर्स, ठीक है। हाँ, फ्यूचर में हम स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज को अलग कर देंगे, सिर्फ चैप्टर लेवल के टेस्ट ही देंगे हम। 1 दिसंबर के बाद जो भी एडमिशन हो रहे हैं हम चैप्टर लेवल के टेस्ट ही दे रहे हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हमें बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होती है, राइट। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज करें दिसंबर जनवरी फरवरी में, या डेली आंसर राइटिंग करें, और क्यूपी, क्यूपी इज द बेस्ट थिंग, क्यूपी इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। और है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स फेज के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ जीएस एंड सी सेट ओनली। लेकिन प्रीलिम्स में भी मैं कहता हूं प्रीलिम्स इज अनप्रोडक्टिव एग्जाम। प्रीलिम्स का आपकी फाइनल सिलेक्शन पे, मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। मस्ट यूज द टाइम ऑफ प्रीलिम्स फॉर मेंस। जिसने प्रीलिम्स का टाइम यूज कर लिया मेंस के लिए, he will be really successful, will get a very good score. So prelims के टाइम पर लाइट वर्क करें कॉमर्स में। फॉर एग्जांपल यू कैन डू कैजुअल रीडिंग ऑफ फॉर्मेट्स, फॉर्मूलाज एंड डायग्राम्स। सिर्फ 2 या 3 संडे में कर लेंगे। संडे को जो है 1 घंटे के लिए फॉर्मूलाज लेकर बैठेंगे, रिवाइज हो जाएगा। फॉर्मूलाज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। देयर आफ्टर नेक्स्ट संडे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, नेक्स्ट संडे फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू कैन डू। पेपर 1 की रीडिंग के लिए हम जो ना वी विल टेक ए सेशन विद श्री हरि कृष्ण गणेशन, 105 रैंक है, आईएफएस, अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, उसको बुलाएंगे। ही गोट 158 मार्क्स इन पेपर 1। तो मैं उनको इनपुट दे दूंगा कि क्या और एडिशनल बताना चाहिए, बट ही विल आल्सो शेयर हिज ओन स्ट्रेटजी। पेपर 1 में ही गोट 158 मार्क्स इन लास्ट ईयर, ठीक है। सो पीडीएफ का शेड्यूल, दिस पीडीएफ ऑफ शेड्यूल, ये उस पे है, टेलीग्राम चैनल पे, रैंकर्स के टेलीग्राम चैनल पे है, ठीक है। हाँ, तो कैजुअल रीडिंग कीजिए फॉर्मेट्स की, या क्विक रिवीजन पॉडकास्ट है वो सुनिए, सारे नहीं, जहां आपको डर लग रहा है वहां सुनिए। फॉर एग्जाम्पल यू फील वरीड अबाउट मोदिग्लानी मिलर अप्रोच, सो फेस द फियर, फियर विल डिसअपियर। यू आर वरीड अबाउट मोटिवेशन चैप्टर, तो उसके क्विक रिवीजन पॉडकास्ट सुन लीजिए। यू आर वरीड अबाउट न्यू क्लासिकल थिंकर्स, क्विक रिवीजन पॉडकास्ट। ओटी के बाकी हैं, कुछ कुछ टेक्स्ट के बाकी हैं, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। और यू डू रिवीजन ऑफ की कंसेप्ट लाइक एमएम थ्योरी, क्लासिकल थिंकर्स। वाइल डूइंग रीडिंग आपको पता होता है कि माई प्रोसेस कॉस्टिंग इज वीक और माई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वीक है, ठीक है। तो उसको जो है प्रीलिम्स के टाइम पे जरूर देखिए। मतलब पूरा सिलेबस कवर करना आपका पर्पज ही नहीं होना चाहिए, कैजुअल प्रिपरेशन, जिसे बोलते हैं ना एडोक प्रिपरेशन होना चाहिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल। मई में नहीं करना, एक्सेप्ट मे, फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल। मोर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च, लेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल आल्सो। डोंट हेजिटेट यूजिंग योर टाइम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये याद रखना। मेंस के जितने नजदीक रिवाइज करोगे उसका उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। हमारे एक स्टूडेंट थे, वो तो रिवर्स स्टडी करते थे, प्रीलिम्स के टाइम पर मेंस की काफी कुछ स्टडी करते थे, प्रशांत गौतम शर्मा। उसकी तो पढ़ने का तरीका ही अलग था, पेपर 1 की तैयारी करते थे और पेपर 2 के एग्जाम लिखते थे। वो कहता था सर मैं पेपर 1 की तैयारी कर रहा हूँ और पेपर 2 का मुझे टेस्ट लिखना है, व्हाट इज दिस। बोला सर आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस, मैं अपने ब्रेन को चैलेंज करना चाह रहा हूँ। एंड
ठीक है सर, आई एम सीइंग final right now drawing articles. I have my attempt in November 20. I want to appear for 26. I have a strong commerce base. What should I deal with it? ठीक है, एक बार मैं पूरा बता देता हूँ, उसके बाद I'll take individual doubts also, right? So practice of certain numericals. So that is written by you, written for you. prelims के समय पर ये भी करना है, but don't devote more than 1 hour or so. ज्यादा टाइम नहीं लगाना. टाइम लगाने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि prelims का ये रिवीजन से रह गया. यू पुट टाइम व्हेन यू आर हैप्पी विद प्रीलिम्स प्रिपरेशन. प्रीलिम्स का मॉडर्न या अच्छी तरह से रिवाइज हो गया, थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहे हैं, तो अपने आप से जो है ना मेंस के लिए कुछ टाइम मांग लीजिए. चलो मोदी रानी मिलर भूल गए, उसका पॉडकास्ट सुन लेते हैं, यू लिसन टू दैट. ठीक है. नाउ सेकंड डिटेल रिवीजन एंड सब्जेक्ट टेस्ट है. सो जून 26 से जुलाई 26, जून जुलाई 26 मीन्स 1.5 month बिफोर द एग्जाम. So if you have not written the standard test, subject test अगर आपने नहीं लिखे तो इस समय subject test जरूर लिखना है. Subject test means test of cost accounting, income tax, audit separately. If you have already written subject test in the month of December, January, February, then there is no need to write those subject test. But in that case, must write 4x4 comprehensive test. आप लोगों को 4 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मिलते हैं, इस पीरियड में जरूर लिखिए. कब लिखेंगे? पूरा जून रिवाइज कीजिए. इन द जुलाई फर्स्ट वीक यू मस्ट राइट सब्जेक्ट टेस्ट पेपर 1. फॉर एग्जांपल यू रिवाइज पेपर 1. thereafter जुलाई एंड राइट सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ पेपर 2. sorry, not subject test, comprehensive test of paper 2. and in August revise whole syllabus, write both the tests. I'm getting so many queries. उससे पहले मैं जो ना I'm explaining this is very important. So ये आप कर लेंगे. एंड उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट से, so those who have already written subject test, no need to write subject test. हाँ, 1-2 सब्जेक्ट टेस्ट बच जाते हैं तो एग्जाम डेज में कह सकते हैं सर मेरा सब्जेक्ट टेस्ट दिसंबर में नहीं हुआ था, आई वांट टू राइट दीज 2 सब्जेक्ट टेस्ट. सो यू कैन राइट इट. नहीं भी कोऑपरेट करे रैंकर्स वाले तो अपने टेस्ट आंसर राइटिंग जरूर कर लीजिए. क्वेश्चन पेपर तो होगा, ठीक, अपने फ्रेंड को दे दीजिए या 1 डे के बाद खुद चेक कर लीजिए इफ यू हैव नॉट रिटन सब्जेक्ट टेस्ट. हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है एंड दैट शुड बी रिटन एट लीस्ट 20 days बिफोर द जीएस पेपर. ऐसा नहीं कि जीएस से 10 दिन पहले कर रहे हैं. 20-25 days मीन्स आफ्टर राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट यू शुड हैव 3 to 4 days और 2 to 3 days फॉर ओवरकमिंग द वीकनेसेस. क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लिखने के बाद डेफिनेटली विल कम टू नो सर्टेन वीकनेसेस. अब वो वीकनेसेस हैं तो आपको उसको रिकवर करने का टाइम चाहिए, अदरवाइज वो मेंस का एग्जाम लिखते समय वो आपको हॉन्ट करेंगे कि यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर कॉमर्स, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर कॉमर्स. ठीक है. सो ऑलवेज कीप ए डे और 2 फॉर ओवरकमिंग योर वीकनेस. इवेल्यूएशन का वेट नहीं करना. एट द टाइम ऑफ राइटिंग आंसर यू विल कम टू नो कि मेरा जो है फाइनल अकाउंट्स में दिक्कत, मेरा जो है कैपिटल बजटिंग में दिक्कत हो रहा है. ठीक है, तो फिर कैपिटल बजटिंग को कीजिए, क्योंकि at the time of August you cannot decide to leave or do any chapter. वो डिसीजन आपका प्रीवियस ईयर हो चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी में हो चुका डिसीजन. इन द मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त बिफोर द एग्जाम यू शुड नॉट डिसाइड ड्रॉपिंग एनी सब्जेक्ट और इंक्लूडिंग एनी सब्जेक्ट. ठीक है, वो डिसीजन आपने 1 साल पहले ले लिया था कि मुझे जो है इनकम टैक्स न्यूमेरिकल्स नहीं करना. किसी फ्रेंड ने कहा कि नहीं नहीं इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के बगैर तो काम नहीं चलेगा, देखिए उसने किया था. नहीं, अब नया पंगा नहीं लेना. जितना आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है वो अभी कर लीजिए 25 में. आप मेरे से डिस्कस कीजिए. आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही मेरी स्ट्रेटजी, मेरे से आर्ग्यू कीजिए, बहुत जरूरी है. आप आर्ग्यू कीजिए, आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू कि नहीं ये जरूरी है. आई विल गिव मोर रीजन. लेकिन ब्लाइंडली जो है अज्यूम मत कर लीजिए कि सर ने तो रिस्क दे दिया मुझे. नहीं, डिस्कस कीजिए कि सर ऐसा लग रहा है कि इससे जो ना काम नहीं चल पाएगा, फिर मैं आपको और अच्छी तरह से बताऊंगा. सो ब्रेन शुड बी सेटल्ड बिकॉज स्ट्रेटजी वाले होंगे. सो आई हैव गिवन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आल्सो इन द अगस्त मंथ ऑफ अगस्त. यू विल राइट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट एंड व्हेन फाइनल एग्जाम विल बी ड्यू यू विल गेट 5 days. उस 5 days में एक दिन के लिए कुछ रिविजन बचा के रखिए. For example, while doing revision of commerce in the month of
जुलाई अगस्त, यू माइट फील दैट जीएस छूट रहा है, तो ऐसा कीजिए ऑडिट या कोई भी छोटा सब्जेक्ट इनकम टैक्स, पर्टिकुलर इनकम टैक्स का रिवीजन 5 डेज के लिए पोस्टपोन कर लीजिए, 5 डेज के लिए. So at that point of time, you can put 1 day or 1.5 day for revision purpose, not final touch. So remaining 3.5 days should be given to final touch, right? So this is broad strategy. अब मैं एक एक करके क्वेरी ले लेता हूँ सभी की. कहाँ से स्टार्ट करें? Sir, what things and how should be covered with notes, PYQ and syllabus based or just reading and classes? ठीक है, reading classes plus definitely 1/3 of PYQ you can do, or illustrations only or exercises only, but 26 वालों को इतनी जल्दी नहीं बचाने की, एवरीथिंग शुड बी डन. बाद का टाइम भी आपका ही है, प्लान करके रखिए. वीक और 10 डेज में भी लॉस्ट, बट ब्रॉड प्लान तो आपके पास है ना 4 मंथ का. एक सुपर कलाम. ओके, व्हाट शुड बी कवर्ड फर्स्ट पेपर और पेपर 2? देखिए पेपर 1 में मैंने इसमें लिखा हुआ है, और एक इसमें इट इज रिटन हेयर कि व्हाट इज नॉट टू बी कवर्ड, रिमेनिंग शुड बी कवर्ड. इंटायर थ्योरी ऑफ पेपर 1 शुड बी कवर्ड कंसिडरिंग ट्रिपल टिक एंड डबल टिक, right? Income tax numericals, if you are not having very good hold, leave it. Amalgamation, you do internal only, you can do amalgamation if you are having very good hold. नया पंगा नहीं लेना, फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल नहीं करना. प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसा चैप्टर है जो बार बार नहीं आता है, तो सिंस इट हैज बीन आस्क्ड इन 24, तो 25 में भी आने के चांस नहीं है, 26 में भी आने के चांस मुझे तो कम लगते हैं. फिर भी 26 के लिए आपके पास टाइम है, कर लीजिए, राइट? विच ईयर पीवाईक्यू शुड बी कवर्ड? पीवाईक्यू पिछले 10 साल का तो करना ही चाहिए. 10, 12, 2009 के बाद कीजिए, क्योंकि 2009 सिलेबस वाज चेंज्ड, बट सर्टेन ईयर्स लाइक 2012, 13 थोड़ा सा अबनॉर्मल है, यू कैन स्किप 2012, 13, ठीक है? या इफ यू फील एनी 2012, 13 पीवाईक्यू इज वेरी टफ, छोड़ दीजिए उसको. 2005 आल्सो टफ, छोड़ दीजिए. सर, I have QP class but attempt in 26, so it will be valid till that period. QP कम से कम 12 मंथ का तो देंगे, लेकिन QP में आयुषी आपके पास नोट्स बन जाएंगे, आपको जो है क्लास की वैलिडिटी की वर्री नहीं करनी. फॉर एग्जाम्पल इंट्रो कंक्लूजन मैंने लिखवा दिया है. फॉर एग्जाम्पल टेस्ट चेकिंग इट इज ऑलरेडी डन, डायग्राम मैंने बनवा दिया है. तो QP में ज्यादातर चीजें आपको मैं नोट करवा रहा हूँ, रेडीमेड क्लास पे डिपेंडेंसी नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, ठीक है? होपफुली फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स देयर शुड नॉट बी एनी चेंज. लेकिन क्या होता है, जो हमारा जो आईटी प्रोवाइडर होता है, आईटी प्रोवाइडर अगर वो हमें प्रॉब्लम करता है, अगर उसका सिस्टम इनसिक्योर है, जैसे कि पीछे हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम इनसिक्योर था, उसमें वैरायटीज नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी, तो हमें मूव करना पड़ता है. होपफुली विद दिस करंट आईटी प्रोवाइडर दैट इज लर्निस्ट विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग. अगर वहां पर हम 10 साल तक कंटिन्यू रहते तो भी हम अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, कोई मजबूरी है तो करते हैं, अदरवाइज आपके लिए लिमिटेशन लगाना डिसिप्लिन के लिए तो हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा पर्पज नहीं हो सकता. हाँ, डिसिप्लिन जरूर देते हैं कि 1 ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट कीजिए. छोटे बच्चों को कहते हैं ये काम पहले कीजिए. इफ आई गिव यू फ्रीडम कि कभी टेस्ट लिख सकते हो, कभी पढ़ सकते हो, नहीं हो पाएगा. सिर पे डंडा जरूरी है कि नहीं, आपको 12 मंथ में अपना सिलेबस करना है. 12 मंथ के बाद नरोत्तम जी भी क्वेश्चन पूछेंगे, मंजित भी क्वेश्चन पूछेगा, क्यों चाहिए आपको, अब टाइम पे क्यों नहीं किया, टीचर लाइक क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने. सो कवर इट टाइमली, ठीक है? ओनली 1/3 पीवाईक्यू शुड बी कवर्ड. ये था फाउंडेशन स्टेज में. ड्यूरिंग फाउंडेशन स्टेज यू सी पीवाईक्यूज, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट टफ पीवाईक्यूज, यू सेलेक्ट 1/3 ऑफ द इजी पीवाईक्यूज, क्योंकि आपको तो कोई क्वेश्चन चाहिए ना, यू टेक फ्रॉम पीवाईक्यू, दैट इज द सिंपल रीजन. Other selective chapter numericals theory for all chapters should be done. Definitely remaining should be done in the second phase. Other than selective chapter in numerical theory of every chapter is essential. You can do it selectively, but you cannot leave any chapter because compulsory short notes are asked from theory. That is the reason. हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो थ्योरी में काफी कुछ कट कर सकते हैं. एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि आपको 1750 का तैयारी नहीं करना है. इफ यू आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम, यू प्रिपेयर फॉर 1700 इंस्टेड ऑफ फर्स्ट रैंक. स्टे हैप्पी विद 10th रैंक.
इंस्टेड ऑफ 10th रैंक स्टे हैप्पी विद 100th रैंक। अगर आप 50 मार्क का कंप्रोमाइज कर लेंगे तो आपका ऐसा हो सकता है कि आप टॉपर बनने वाले थे तो टॉप 10 में आ जाएंगे, 10 में आने वाले थे टॉप 100 में आ जाएंगे, 100 में आने वाले थे टॉप 200 में आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि टॉपर बनने वाले थे और आप तो आउट ऑफ लिस्ट हो गए। इस मैथमेटिक्स को हमेशा याद रखना। कहने का मतलब यह है कि इफ सर्टेन aspects of your syllabus are eating too much time, too much attention, ठीक है, so instead of doing that, prepare 1700, 1650 और 85 very well, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। सब कुछ आपने एवरेज कर लिया, यू विल गेट वेरी एवरेज मार्क्स। आपको 8 में से 5 करने हैं, आपको पहले पता चल जाए कि ये 5 क्वेश्चन आने हैं, वुड यू प्रिपेयर 8 और 5? 5 ओनली ना। तो आपको पता है कि यहां से 4.5 क्वेश्चन तो आने आने हैं, डू दैट। पता है कि अमलगमेशन फॉर, वी नो दैट फ्रॉम दीज 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल कंपल्सरी बी आस्क्ड, कीजिए उसको, राइट। Selective chapter. Okay, sir, can you guide about paper 1 part is selective reading, which subjects we should prefer numericals? मैंने दोबारा बता दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है FM should be done completely, but if someone is not good in capital budgeting तो 15 मार्क के न्यूमेरिकल की रिस्क ली जा सकती है, ठीक है, रिस्क को कोई जरूरी नहीं है। टैक्स इफ यू आर हैविंग होल्ड, टैक्स इफ यू आर हैविंग होल्ड, do it, otherwise you can leave numericals of tax. You should do house property, because generally UPSC asks question from house property. Come to accounts. In accounts, issue of shares you must do except ESOP accounting. Theory तो सभी जगह करना है। Final accounts I say skip it. मैं आपको बीच का रास्ता नहीं बता सकता, वो आपको कंफ्यूजन में देगा। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने बेस्ट माइंड का यूज कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं फाइनल अकाउंट छोड़ दीजिए। टाइम है, इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम कि कुछ नहीं पढ़ना, कर लीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में फायदा नहीं मिलने वाला ज्यादा, ठीक है। अमलगमेशन इंटरनल कंस्ट्रक्शन मस्ट बी डन। बाकी जो है, इफ यू आर हैविंग गुड होल्ड, गुड इंटरेस्ट इन अमलगमेशन अकाउंटिंग, डू, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। कम टू दिस cost accounting. In cost accounting, must do CVP analysis, must do small topics like activity based costing, like flexible budget, right? Yes, you can make a choice of not doing process costing if you are not having good hold and if you are not having time, process costing, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो इफ फॉर एग्जांपल 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एंड इफ आर नॉट हैव वेरी गुड एट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो भी उसको स्किप कर सकते हैं। मींस थोड़ा सा ट्रेंड देखें, ठीक है। बाकी ऑडिट रिमेनिंग थ्योरीज फाइनल अकाउंट्स आर्टिकल्स इवन हैव माय अटेम्प्ट इन नवंबर 21 टू अपीयर फॉर यूपीएससी इन 26 हैव स्ट्रांग कंप्लीट कॉमर्स बेस। 26 अपीयर क्यों कर रहे हैं आप? नवंबर 26 में अटेम्प्ट है ना, फाइनल अटेम्प्ट ना, तो फाइनल बनो ना, पहले सीए बन जाओ आप। फर्स्ट यू शुड बिकम सीए, नवरुकोर सीए बन जाइए, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल डिसीजन होगा। आई विल सजेस्ट पोस्टपोन योर आईएएस प्रिपरेशन बाय 1 ईयर। 27 इज आल्सो नॉट टू लेट, 27 भी बहुत नजदीक का टारगेट है, 27 कोई बात ज्यादा दूर नहीं है, ये आया 27, ठीक है। मस्ट क्वालिफाई सीए इन नवंबर 2026। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप जो है उसके साथ कंप्रोमाइज करें, ठीक है। हाँ, अगर आपने सोच ही लिया कि मुझे तो सीए वाला काम करना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करना, मजबूरी में मैंने आईपीसीसी कर लिया कि बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है सीए से, तो ठीक है, फिर आईएएस में जो ना आंख मीच कर बहुत अच्छी तरह से लग जाइए। सीए फाइनल के बारे में नहीं सोचना। सीए फाइनल आप कभी भी 6 महीने का लगाकर टाइम कर सकते हैं, वो भी एक अप्रोच है। फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी सीए, राइट। देयर आफ्टर 27 यू अपीयर along with CA, you prepare for this civil services also. For example, you should prepare GS slow and steady. कॉमर्स तैयार करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ए सीए। कॉमर्स पेपर 2 में कुछ देख सकते हैं, यू कैन सी समथिंग इन कॉमर्स पेपर 2, ठीक है। और जीएस की कोचिंग ज्वाइन मत कर लेना जब तक सीए ना बने, क्योंकि जीएस की कोचिंग पूरा उसको तहस नहस कर देगा। वैसे तो मैं जीएस की कोचिंग के फेवर में नहीं हूँ, सीए के लिए पार्टिकुलरली। जीएस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्लासेस के अंदर। जीएस में आपको 3000 पेजेस पढ़ने होंगे कम से कम,
ठीक है, कोचिंग की क्वालिटी पे मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, कोचिंग वही करें कि बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है, या जिनको कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। आप सोचें कि कोचिंग के बाद फोकस्ड हो जाएंगे, वेल डायरेक्टेड हो जाएंगे, नहीं, उससे अच्छा तो कोई मेंटरशिप कोर्स है वो कीजिए जीएस के अंदर, ठीक है। और यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर 2027, 27 की तैयारी कीजिए आप। आयुष इज यूजफुल व्हेन यू आर डन विद फाउंडेशन सर, आई सेड दैट इज व्हाई आई आस्क्ड द सेम, यूजफुल व्हेन यू आर डन विद, हाँ, फाउंडेशन करने के बाद तो आपको सिलेबस के ऊपर जो ना फिर होल्ड स्टडीज करना है 4 मंथ लगाकर, 4 मंथ लगाकर। हालांकि हमने इस बार क्या किया था, वी इंक्रीज द स्ट्रेस द शेड्यूल ऑफ क्लासेस फ्रॉम 6 मंथ टू 10 मंथ्स, तो उसमें कैंडिडेट्स वर एबल टू डू सिलेबस वेरी वेल, और वेरी वेल नहीं तो कम से कम वेल दे वर एबल टू डू। लेकिन फाइनली वी केम टू द कंक्लूजन दैट पहले स्टूडेंट को क्लासेस से फ्री कर दें, सिलेबस कवर करा दें, टेस्ट उसके बाद शुरू होने चाहिए, क्योंकि पूरा होल्ड आ नहीं पाता है। फर्स्ट विद इन 5 मंथ्स, 5.5 मंथ सिलेबस कवर करा दिया, सारे कंसेप्ट कवर कर दिए, इजी इजी क्वेश्चंस कवर कर लिए, देयर आफ्टर स्टार्ट रिवीजन, क्योंकि रिवीजन के समय बेसिक्स पढ़ने का मन नहीं करता, स्टार्ट रिवीजन, ठीक है। बट यस, यू शुड प्रिपेयर पीवाईक्यूज वेल। सर आई एम सी राइट नाउ अंडरगोइंग आर्टिकल, अच्छा ये तो आपका आंसर हो गया है सुजल, हाउ टू कवर कॉस्ट अकाउंट एंड टैक्सेशन, वन हु हैज नॉट डन दीज बिफोर, टैक्स का थ्योरी करना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं करना सुजल। कॉस्ट अकाउंटिंग सीवीपी कर लो, बी सिलेक्टिव, सीवीपी तो अच्छी तरह, थ्योरी तो जरूर करना, ट्रिपल टिक और डबल टिक थ्योरी यू मस्ट डू, न्यूमेरिकल सीवीपी मस्ट डू, एबीसी भी कर लीजिए, फ्लेक्सिबल बजट कीजिए, और मेटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। सजल को अब मैं आंसर दे रहा हूं, कॉस्ट अकाउंट टैक्सेशन का न्यूमेरिकल मत करो, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में सीवीपी, एबीसी, फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चंस, मेटेरियल एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस ये कीजिए। तो मैंने क्या छुड़वाया, मैंने छुड़वा दिया प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, वेरियस अदर बजट्स, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड छुड़वा दिया, फिक्स्ड ओवरहेड छुड़वा दिया। दिस इज फॉर सजल ओनली, टेक केयर, नॉट फॉर एवरीवन, और दोज हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम लाइक सजल, और लैक ऑफ होल्ड लाइक सजल। आप ये मानकर चलिए यूपीएससी 8 में से 5 क्वेश्चन पूछती है, इसका मतलब ये है यूपीएससी एक्सेप्ट्स दैट इफ यू आर हैविंग पार्ट नॉलेज स्टिल यू डिजर्व दिस सिविल सर्विसेज। अदरवाइज यूपीएससी 5 क्वेश्चन देता, 5 के 5 करने होते, मींस परफेक्शन मस्ट हैव बीन एक्सपेक्टेड बाय यूपीएससी इन दैट केस। माय कॉस्ट इज वीक सो शुड आई फॉलो एनी बुक टू कवर, नहीं नहीं नहीं, बेसिक की कोई जरूरत नहीं, बेसिक नो नो नो, रैंकर्स ओनली। और अगर आपने रैंकर्स क्लासेस ज्वाइन कर रखा तो अपने टीचर्स का दिमाग खाइए ना, ठीक है, पूछिए, क्वेरी पूछिए, टाइम लीजिए, 3 दिन से ये काम कर रहे हैं, हाँ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। सो दिस इज एवरीथिंग, जल्दी जल्दी में मैंने कोशिश किया है। अब आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना है, इंप्लीमेंट करना है। सक्सेस का मंत्र ये है, इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम देन ओनली यू कैन बी श्योर अबाउट सक्सेस। सबसे बड़ा मंत्र है सफिशिएंट टाइम, एंड दैट सफिशिएंट टाइम शुड बी डिवाइडेड इनटू these five, that is 5 segments है, 5 segments मैंने बताया, 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ एंड 5 डेज। अगर आप 6 मंथ फाउंडेशन, 4 मंथ चैप्टर लेवल, 3 मंथ सब्जेक्ट लेवल, 1 मंथ कॉम्प्रिहेंसिव, 5 डेज फाइनल टच, डेफिनेटली यू कैन गेट गुड स्कोर। हाँ, इसमें आपको वैल्यू एडिशन करते जाना है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर कोर्सेज आल्सो, यू कैन प्रिपेयर सेल्फ आल्सो। कंपटीशन है तो डेफिनेटली गाइडेंस का फायदा उठाना चाहिए, वी आर वर्किंग हार्ड, उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। ऋषि का क्वेरी है, सर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन 21 अक्टूबर ड्यू टू फाइनेंशियल आई वाज नॉट एबल टू डू, आई वाज डूइंग जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माय सेल्फ, नाउ समटाइम्स आई फील दैट आई एम लेट नाउ, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज ऋषि? 24? नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट लेट। बस ये कि आप, जैसे तपस्या होता है ना, दधीची तपस्या, मतलब दिन रात अपनी स्टडी कीजिए, अपनी हेल्थ को पूरे उस पर लगा दीजिए, मैनेज करना हेल्थ को, फोकस्ड होकर तैयारी करना अच्छी तरह से, ठीक है। मतलब डुएबल है, 26 में तो डुएबल है, 25 आई डाउट, 26 इट इज डुएबल।
और अगर आपने 50% से ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया, कॉमर्स आल्सो, जीएस आल्सो, देन 25 इज आल्सो डुएबल। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, कर सकते हैं आप। ठीक है। हाँ, मेंटोर की, जिनके पास जो रिस्क नहीं ले सकते, चांस नहीं ले सकते, मस्ट हैव मेंटोर, मस्ट हैव ए फ्रेंड। जरूरी नहीं है कोचिंग ज्वाइन करना, मस्ट हैव ए गुड फ्रेंड जिससे आप कुछ गाइडेंस ले सकें। ठीक है, जिससे आप कुछ नोट्स वगैरह ले सकें, टेस्ट वगैरह ले सकें, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें, शेड्यूल जान सकें, बेस्ट प्रैक्टिसेस पता लगा सकें। राइट। Okay, everyone, you must be knowing my contact number also. So I'm giving my contact number. If you're having any doubt, query, you can WhatsApp. WhatsApp. So 9818368606 is my contact number. You can ask your doubts here or query here. Right. So thank you very much for attending this meeting in this good number. And most of you are our students. That's good, wonderful. Have a good night, everyone. For 2027, which should I take your classes? अभी तो आपके पास टाइम है. You should take as a 26 you will be appearing final. So definitely in June, July, August, September, October, November 26 you cannot take the commerce classes. So either your classes should be finished before June 26. Otherwise you should start your classes after, immediately after writing your CA final, लेकिन वो advisable नहीं है. So you should take your classes in the month of you should take our advanced course, because you are going to be CA. You should take our advanced course in the month of October November 25. October November 25. ध्यान रखना अपनी दूसरी कोचिंग कौन सी चल रही है. October November 25. You can do सिर्फ पेपर 2 कोचिंग आल्सो. कोई जरूरी नहीं पेपर 1 की कोचिंग लेना. हाँ, अगर आपको डिसिप्लिन तैयारी चाहिए, फोकस तैयारी चाहिए, तो आप पेपर 1 की कोचिंग ले सकते हैं. अदरवाइज पेपर 2 कोचिंग शुड बी टेकन बाय ए सीए. आप ले सकते हैं. द कोचिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर अप्रैल मई 26, बिकॉज अप्रैल मई से तो आपको सीरियसली सीए फाइनल में लगना है. ठीक है. सो अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू कैन डू दैट. और आफ्टर राइटिंग योर दिस सीए फाइनल, फिर टाइम की आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी. उस समय तो घर से बाहर नहीं निकलना. उस समय तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन में, स्टडी में टाइम लगाना है रमनूर. ठीक है, 12-13 घंटे पढ़ना है. तब 27 में आप पक्का लिस्ट में आ जाएंगी. सिर्फ भगवान की मर्जी नहीं होगी तो हो सकता है लिस्ट में ना आए. ठीक है, बट कर्मणे वाधिकारस्ते गीता में लिखा हुआ है, तो भगवान की मर्जी भी सभी के साथ जुड़ी हुई है. ठीक है. हाँ, जहाँ पर स्टेक्स हाई होते हैं कि आपको 27 को लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज करनी होंगी. हेल्थ मैनेज करनी होगी, फैमिली के मैटर्स, मतलब पूरा इकोलॉजी आपके फेवर में होना चाहिए ताकि कोई भी रिस्क ना आए. इवन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर प्रीलिम्स में गोले करते हैं, उसके बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. कई बार कैंडिडेट क्या करता है, अपना रोल नंबर के बारे में कुछ कटिंग वटिंग कर देता है, तो पूरा खेल खत्म, प्रीलिम्स खत्म, मेंस खत्म. सो टेक्निकल छोटी छोटी गलतियों का भी ध्यान रखना होगा. अच्छे वाली जो है टेक्निकल होल्ड होना चाहिए. छोटी छोटी मिस्टेक से बचना चाहिए. कई बार क्या होता है, एडमिशन के फॉर्म ही जमा नहीं किए, फॉर्म में कुछ गड़बड़ कर दी. सो सारी स्टेजेस पे जो है किसी एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब पूछते रहे अपने सीनियर से. ठीक है. मीन्स लॉट सर नवरूर जी इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दिया ऑलरेडी. आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंटर फाउंडेशन एवरी. फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंटर. Okay, you did first attempt. You did C enter in first attempt. Good. Thank you. And for more query, you can write me or call me. Okay, everyone. Have a good night.